Yes, I am. चल चल cool. Is my screen visible? हाँ जी. ठीक है. Guys, lucky for us this time. थोड़ा सा easier side पे ही है course. We have 3 sessions, mostly theoretical, and a few sums that are like really short. So the goal in this session is to try to cover as much part of the portion as we can, possibly 8 and 9 together for sure, 10 if we get the time. So some of the theory I'll directly skim through because you can do it while you're redoing the sessions. But all of the sums we're definitely gonna do in all of the 3 sessions combined. And yeah, let's begin with session 8. One second, I'll present. Yeah. So session 8 is basically a little more deep dive into cash flow statement. Although we've already done entries in the cash flow statement into for like cash and other entries, this is just expanding on that idea, telling us what all other items are covered inside of that. So starting में we already know that cash flow statement basically consists of 3 main domains, that is operating, investing, and financing. Whatever net comes out of here is the net increase in cash during the year, and we add the cash at the beginning of the year to get at the cash at the end of the year. I hope everyone's clear on this. I mean, this was already covered in the previous sessions. Yeah. So now we're basically getting in depth into what all these 3 different heads cover. So operating, first off, starting with operating, everything that is concerned with regular going concern of the business, that is repetitive transactions or the regular business of the company. For example, collection from customers, that being sales, cash sales, tax. Every year since we do tax also comes here. Scrap, and in outflows you would have payment to anyone that is connected to the day-to-day operations of the business or the main core of the business, that is suppliers, payment for expenses, income tax, and indirect tax. This is just discussing the heads. There's no sum here for this section as such, so I'll just skim through this quickly. Now for financing, as we all know, the blue box in Ashneer Rover framework, or as sir used to say, financing में basically equity और debt से related जो भी है सारा कुछ आता है. So that, one sec. Yeah. Yeah. Video में. Might as well. सेंटी में बैठे हुए वीडियो छुपाओ मेरे को. Uh, yeah. Where's the deck? Oh, 1 second, guys. It's taking time. Yeah. Moving on. We were at investing. Sorry? Can we go to the first slide that you were showing? Cool. I'll push to the first one. First one. one, just my, yeah. 1 sec. This one, right? This one. Yeah. Yeah. Tell me. What's the. Did you have a doubt here? Yeah.
we बताओ। actually just skimmed through this कि ये तो किया ही हुआ है पहले, थोड़ा सा बता दो इसका. हाँ हाँ. So basically, there are three different heads under the cash flow statement. You must have heard about it at least in the class: हाँ, operating, investing, and हाँ, financing. हाँ. Right? Yes. तो उन तीनों का जो फाइनल बैलेंस होता है, we add them up here, operating, investing, and finances तीनों का balance, and this gives us the net increase or decrease in cash during the year. I mean, the sum of all three heads, or like the sum or subtraction, whatever, depends on positive or negative. So in तीनों का sum will give you net increase or decrease in the cash during this year. And if you add the cash at the beginning of the year into this, you will arrive at cash at the end of the year. For example, I had 50 rupees at like 500 rupees in the beginning of the financial year. And let's say overall changes in the cash flow statement, combining all three, operating, investing, and financing, ये सब मिला के अगर 200 हुआ, तो 500 plus 200 would be my cash at the end of the year. As simple as that. That's why we skip through. Got it. And this cash Cool. can be an inflow and it can be an outflow. तो उस हिसाब से plus minus हो जाएगा. Yes, yes. Depends. I mean, it depends on case by case basis. Sometimes it's a positive inflow. Sometimes it's an outflow as well. But this is just theoretical here. There's no sum in this one, so that's why. नो कि inflow वाले कौन से outflow, ये बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं inflow outflow. I mean, you don't have to necessarily like learn every item for like inflow or outflow. If you just so let's say based on the transaction, right? If I say that we pay tax during the year, so that means there's clearly an outflow. I mean, I'm paying outside to government bodies. So that's how like you can clearly bifurcate basis the transaction. But yeah, if you want to keep a check, you can go through this as well. Can you show the ones for the financing activity? Operating Yeah, we're getting there. So for financing, again, everything that is concerned with either raising equity or servicing debt or taking any kind of long-term debt is considered under financing. These are the heads here. You can go through them. And right after the session, I want to cover the numericals after this. Investing, did someone have a doubt in this one? Investing? Cool. So anything relating to long-term assets that we acquire for the business or any kind of investments that we make outside our business as well are considered under investing. That is plant, machinery, equipment, all of that. This comes under here. Also, any kind of investments outside of the firm. So let's say outside of my firm, I have like petty cash lying around of let's say 1 CR. If I invest that in the stock markets as well, this will come under investing. What is PPE? Plant, equipment, and something else. I can look it up. Wait. Yeah, it's basically. Yeah, GBD per I forgot the third one. Plant, property, and equipment. Yeah, property. Yes. Plant, property, and equipment hai PPE. So anything that comes in handy for the long-term thing of the business is comes under investing. You can go through these heads later on. Again, this is just for a theoretical point of view. Moving on, Music Mart was something already covered in the last class. I'll skip through this. Now, this was one activity that started inside the class. I mean, this was just bifurcating transactions based off cash or operational. You can look at the sheet here and try to fill in the buckets by your own after you're practicing this. Since there's a test tomorrow based on MCQs, I'm 100% certain ये cash buckets और ये सब नहीं cover होगा. So again, I'm skimming through this. There are some numericals that I want to cover first. If we have time, we'll come back to this. So these, yeah, something like this can definitely be seen in tomorrow's test. I mean, simple transaction, but it will just take you one step to think for. So let's say, for example, there was a salary expense of 100 rupees. This is during the year. So I have to pay out salary for this year of worth 100 rupees. And outstanding salary is basically a salary that I had to pay but did not. So it came under my liability. That is from last year. So from last year, I had zero to pay. Sorry. Yeah.
From last year, I had 0 to pay. From this year, I had 100 to pay, and my outstanding balance is still 20. So that means 20 rupees worth of salary still I have to pay. So this means the question here is how much is cash paid for salary during the year. So for this year, 100 rupees worth of salary was accrued to us, and 20 is still remaining. So we can come to the conclusion that we only paid 80 for this year, and 20 we're transferring it to the next year. I hope the logic in this one is clear to you all. I'll एक take सेकेंड, that as a ओपनिंग yes. बैलेंस शीट का मीनिंग क्या हुआ? बहुत बेसिक चीज ओपनिंग पूछी। बैलेंस शीट yeah, you can of course यार अंकुर सर से पूछ सकते हो, मैं तो साथ में ही हूँ. ओपनिंग बैलेंस शीट इज बेसिकली लास्ट ईयर जहाँ पे क्लोज हुआ था ना, वहां से तो वहीं से हम इस साल शुरू करेंगे. ओपनिंग बैलेंस शीट इज बेसिकली और रिकॉर्ड्स ऑन डे 1 कि पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग चीज तो नहीं रहा हुआ है टू ट्रैक दैट. तो अभी इसमें अगर 0 दिख रहा है तो वो मेरे को इस साल में दिखा रहा है कि अभी के लिए 0 है, लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखूं कि सैलरी एक्सपेंस 100 था और आज वाली मतलब न्यू ईयर वाली के अंदर 20 दिया हुआ है, तो 80 दे चुके होंगे पिछले बार में. यस. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज बेसिकली इस साल के शुरू में जो डेटा था, एंड ये साल ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, लेट्स से जैन टू दिसंबर हमारा है, तो जैन 1 को ओपनिंग वाला होगा, 31 दिसंबर को क्लोजिंग होगा. तो जैन 1 से 31 दिसंबर के बीच में मेरा 100 रुपीज का सैलरी एक्सपेंस हुआ. दैट्स व्हाट दिस मींस. एंड मैंने 31 दिसंबर तक 20 रुपए नहीं पे करे, तो दैट मींस मैंने 80 ही पे किया होगा, तभी 20 बच रहे हैं. लाइक ठीक है. that's how the logic ties up. Yeah. Cool. Similarly, here salary expense again for this year is 100. Prepaid salary. Prepaid is basically salary that you would have already paid in advance last year. Since this is 0 year, we're assuming we had no prepaid salary. तो prepaid salary यहाँ पे 20 दिखा रहा है. That means इस साल का मैंने 100 तो पे किया ही है. प्लस नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैं 20 ऑलरेडी पे करके बैठा हूँ. तो इस साल मैंने कैश में कितना पे किया होगा? That would be 100 plus 20. Because 100 from this year and 20 I'm already paying in advance for the next year. So 120 for this year. Is that cool? I'll take that as a yes. Moving on. Rent expense for this year. This is all of these are like on the similar format of opening and closing. Rent expense accrued to me for this year. So this Jan 1st to 31st December 100 rupees का मुझे cost incur हुआ है. And last year का मुझे already outstanding rent that is mentioned here is basically last year's rent that is due. 30 rupees मुझे last year का already due था. 100 इस year में मुझे accrue हुआ. And अभी closing में 0 है, मतलब मैंने सब कुछ pay कर दिया. तो last year का 30 जो pay करना था and this year का 100, both of them I paid. So basically I would have paid 130 rupees in rent expense this year. Is that clear? Yes. Cool. एक बार दोबारा Thanks for saying that. हाँ Sorry. अरे बिल्कुल यार, अरे बिल्कुल यार, क्या दिक्कत है, चिल. तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब था कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब आप समझे. आउटस्टैंडिंग रेंट इज बेसिकली जो मेरा रेंट ड्यू था पिछले बार बट मैंने नहीं भरा, तो वो बेसिकली इस साल पे आ जाएगा, देना तो पड़ेगा ही ना. तो 30 वाला रेंट जो पिछले साल का बचा हुआ था प्लस 100 इस साल का ड्यू था. रेंट एक्सपेंस इस साल 100 हुआ है और क्लोजिंग में 0 दिखा रहा है. इसका मतलब ये है कि मेरा कोई भी दोनों रेंट पे हो ड्यू चुका है. नहीं बचा है इस साल के एंड पे. यस, दोनों पे हो चुका है. तो टोटल मैंने इस साल कितना पे किया होगा? दैट इज लास्ट ईयर का रिमेनिंग प्लस इस साल का. अभी का लास्ट ईयर का रिमेनिंग वाज 30, इस साल का 100, सो 130. 130. Yeah. प्रियांशु एक बार पिछले वाला भी फिर से कर सकते हैं प्लीज. Sure. So similar concept. प्रीपेड सैलरी का मतलब है कि मैं अगले साल के लिए ऑलरेडी सैलरी पे कर दे रहा हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल लॉयल एम्प्लॉइज है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें आगे फाइनेंशियली दिक्कत ना आए, तो मैं इसी साल उनके अगले साल की सैलरी दे देता हूँ. यहाँ पर 0 है तो दिक्कत नहीं है कुछ अकाउंटिंग की. सो बेसिकली लास्ट ईयर की मेरी कोई भी सैलरी मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं करी थी, बट इस साल का मेरा 100 रुपीज का एक्सपेंस है. तो टोटल मुझे 100 रुपीज पे करने थे इस साल, मगर क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इज 20, मीनिंग दैट मैं 20 रुपीज स्टिल ओ करता हूँ. मैंने 20 रुपीज अभी भी अपने एम्प्लॉइज को नहीं दिया है. 100 रुपीज का टोटल एक्सपेंस था, 20 मैंने अभी तक भी नहीं दिया है, तो मतलब मैंने 80 दिया होगा, करेक्ट? 100 minus 20. Does that make sense? Yeah. Cool. बट इसमें बस मेरे को ये डाउट है कि बिकॉज इट्स अ प्रीपेड सैलरी, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट के लिए तो नहीं रख रहे, बिकॉज
नेक्स्ट में पे करना होगा, बट I think I know. हम नेक्स्ट के लिए हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं. सो लाइक एम्प्लॉय को लेट्स से दिसंबर का टाइम है, लीव्स का टाइम है, जैन से अगला साइकिल शुरू हो जाता है, बट द एम्प्लॉय आस्क्ड मी कि सॉरी कंपनी में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और मैंने एम्प्लॉय को बोला कि यार मैं दिसंबर का सैलरी तुम्हें जैन में ही दे पाऊंगा क्योंकि अभी कंपनी में फाइनेंशियल क्रंच है. तो वो जो 20 रुपीज है वो मैंने अभी तक नहीं दिया है, मैं नेक्स्ट मंथ दूंगा जो कि अगले ईयर में काउंट होगा. जैन से अगला साइकिल है तो वो 20 आउटस्टैंडिंग रह गया, बाकी का 80 मैं सबको पे कर चुका हूँ. ठीक है. सो व्हाट आई थॉट इन दिस वाज कि 100 रुपए वो दे चुका है और 20 उसने नेक्स्ट के लिए रखा है, मतलब ही हैज नेक्स्ट के लिए रखा नहीं, प्रीपेड सॉरी प्रीपेड वाज द नेक्स्ट के लिए रखा हुआ. सॉरी मैं ये दोनों आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में 7 हाँ, क्वेश्चंस prepaid. में ही हो गया. हाँ, मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयज को दिसंबर के टाइम 20 दे दिया अगले साल के लिए भी, क्योंकि दिसंबर का टाइम है, लीव्स का टाइम है, समटाइम्स एम्प्लॉय डू आस्क फॉर एक्स्ट्रा सैलरी फॉर द नेक्स्ट मंथ. तो प्रीपे मैंने 20 कर चुका हूँ और 100 इसी साल का था, तो टोटल 120 मैंने पे किया है. क्या अभी तो 80 था. नहीं वो आउटस्टैंडिंग यार, ये क्वेश्चंस के बीच में स्विच करने में आई गॉट कंफ्यूज. मैं आउटस्टैंडिंग Correct. The second logic was right. समझ गई. हाँ प्रीपेड था वो, मैं क्वेश्चन स्विच करने में ये हाँ, खुद ही तो 100 भी कर चुका है और नेक्स्ट वाले का भी वो प्रीपे कर चुका है. भी कर चुका है. राइट, यस यस यस. ठीक है, आई विल मूव टू फोर्थ. So receivables is basically money that you have, money जो तुम्हें आने वाला है. ठीक है, तुमने सेल कर दी है बट somehow कस्टमर ने क्रेडिट पे लिया हुआ है या जो भी, तो तुम्हें पैसा मिलने वाला है, that is receivable. So 30 रुपीज मेरे पिछले साल के आने थे ऑलरेडी, and that is what opening balance signifies here, and closing balance signifies that 45 मुझे इस ईयर के एंड पे भी आने बाकी है. बट इस साल मेरा टोटल इनकम 100 रुपीज था. सो रिमेंबर, ओपनिंग के साथ हम इस ईयर का देखते हैं तब क्लोजिंग पे आते हैं. दैट्स हाउ द लॉजिक वर्क्स. सो लास्ट ईयर का मुझे 30 आना था एंड दिस ईयर्स इनकम वाज 100. सो टोटल मुझे 130 रुपीज आने थे, राइट. एंड उसमें से 130 रुपीज आने वाले में से मेरा 45 आना ही बचा हुआ है. दैट मीन्स जो इन दोनों का सब्ट्रैक्टिंग बैलेंस है 130 माइनस 45, वो मुझे ऑलरेडी आ चुका होगा. इज द लॉजिक क्लियर? Yes. Cool. I'll move on. Link. 1 second, guys. Send it to yourself. It's copied on the clipboard. Sorry. Yeah. So depreciation charged here was 100 rupees. So now here again, opening balance signifies machine का उस टाइम पे वैल्यू कितना था? It was 1000 rupees last year तक. अभी that is the case, right? Yeah. मशीन का वैल्यू लास्ट ईयर तक 1000 था, अभी 1250 हो गया. बट मुझे 100 रुपीज इस साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था. फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु डोंट रिमेंबर, हम मशीनरी का जो भी वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं फॉर द करंट ईयर. सो 1000 में से विल टेक आउट 100 रुपीज बिकॉज वी आर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन. इफेक्टिवली द मशीन राइट नाउ इज वर्थ 900 फॉर दिस ईयर. सिंस द क्लोजिंग बैलेंस हाउएवर इज 1250, 900 का मशीन था 1250 हो गया. दैट मीन्स जो एडिशनल 350 है वो मैंने परचेज करा हुआ होगा इस ईयर. सो 1250 minus 900 would be the machinery purchased during this year. I hope the concept, this one is clear. Yes. Cool. So again, dividends provided during the year was 100 and reserve and surplus last year was, this year opening was 500 and closing was 870. ठीक है. So reserve and surplus basically for those of you all who don't might not remember, reserve and surplus में हम लोग profit add करते हैं for the end of the year. Let's say मेरा पिछले 10 साल का accumulated reserve था 10 lakhs, मेरा इस साल profit हुआ 1 lakh, तो वो 1 lakh वो 10 lakh के reserve में add हो जाएगा towards the end of the year. So यहाँ पर 500 का हमारा reserve था और उसमें से हमने 100 dividend already pay कर दिया है. Sorry, 100 हमने dividend pay करा इस साल. So basically 870 जो मेरा closing balance है minus opening balance, that is 270 rupees.
270 से मेरा रिजर्व बढ़ा और 100 रुपीज का मैं डिविडेंड पे कर चुका हूँ, तो टोटल मेरा प्रॉफिट 370 हुआ होगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ 370, 270 आई सॉरी 370 आई एडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस एंड 100 आई पेड फॉर इन डिविडेंड्स, तो टोटल प्रॉफिट 470 हुआ होगा. एक आई होप द लॉजिक दिस वन. हमने जो 370 है उसी में से डिविडेंड पे किया होगा ना? तो हम लोग प्रॉफिट में से डिविडेंड निकालते हैं, जो बचा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा. ओके सो 370 प्लस डिविडेंड की या नहीं, डिविडेंड Cool. इसमें वो तो पे आउट कर दिया ना. नहीं, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो बेसिकली लास्ट ईयर का रिजर्व था 500 एंड इस अभी रिजर्व हैज गॉन अप बाय 370, पर हमने 100 रुपए डिविडेंड भी भरा होगा, सो दैट इज हाउ आवर प्रॉफिट वुड हैव बीन 470 एक्चुअली. उसमें 470 में से 100 डिविडेंड चला गया, 370 जो बचा हुआ था वो हमने रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया. ठीक है. Cool. सर ने ये क्लास में आयशा मोटर्स का ये केस स्टडी बस तुम्हें दिखाने के लिए, स्टेटमेंट दिखाने के लिए कराया था कि क्या कैसे कहाँ स्पॉट करते हैं. सो आई एम गोना skip through this. If we have time towards the session, we'll come back to here. बट कोई ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उसमें स्किम थ्रू करने के कल चांसेस बहुत कम है. दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस टाइम. कूल. सेशन 8 इज डन. कमिंग टू सेशन 9. One second, it's on present. Apparently, the internet here at Brick is fucked up today. It's really making me work for it. I think we are. So this sum on slide 1, I'll just zoom it in. It's too much. So the sum on the first slide, ये last slide पे भी है, और इस पूरे टेक में हम जो समझेंगे उसके बाद we'll end up solving this. So going to slide 2. स्लाइड 2 में सिर्फ लिंक्स डाले हुए हैं सर ने बेसिक समझने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी इस टेक में कवर कर रहे हैं. या सो दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम. दैट इज सेशन नंबर 9. These are the kind of questions that we should be trying to able to solve once we're looking at all the 3 financial statements. So we have to look over the years if the company is generating consistent revenues, or like what are the percent growth rate of sales, or like how are the costs being kept under control. You can go through these questions later. I'm skipping them for now. These are basic generic reading material, not a lot of like work around to get to it. Yeah, this and the next slide are complementary. Yeah, this is what is he's trying to explain in slide number 4. The items on slide number 5. So I'll tell you the step-by-step breakdown of how the real income statement looks like. We've already worked on income statement before, but it was kind of unorganized. This is the format that you will see all the public companies' financial records or data in. So basically, this is the basic format. There are obviously little changes and assumptions to. प्रियांशु, एक बार वो भी कवर कर लेता जो इसके पीछे वाली स्लाइड थी, प्राइमरी ऑपरेशनल और सेकेंडरी इनकम. Oh yeah. Cool. So income statement is a financial statement which provides information about the financial performance, धंधा कैसा चल रहा है, all of that.
is called income statement. Income statement is also called profit and loss. That is, income statement is also called the P&L statement or the statement of earning. And so basically there are three heads to this: sales and related expenses, primary, operational. I mean, this should be intuitive to us कि हम धंधा कर रहे हैं तो जो हम सेल्स कर रहे हैं और जो उससे रिलेटेड जो हमारे इन्वेंट्री का कॉस्ट है, दैट शुड बी प्राइमरी एंड ऑपरेशनल. Other operational income is basically anything else outside of our core operation. Any kind of income that is outside of our core operational business is other operating. We'll have more examples to show for this. So let's say I'll give you one example right now. So let's say we're dealing in like stationaries or whatever. So stationaries would be our main product, and the waste paper. So the selling of stationary goods and the cost incurred with this will come under primary. फिर ये स्टेशनरी के बाद जो इसका वेस्ट बचेगा, जो पेपर वेस्ट बचेगा, जो हम रिसाइकल करने के लिए दे देंगे, that is our other operating income. It is not our core business, but since it is aligned with our core business, we'll call it other operating income. And then third, other income would be completely unrelated. Let's say मैंने ऑफिस का प्रिंटर बेच दिया, उससे जो इनकम आई, nothing to do with stationery. So that's how it will come under other income. Can we move on to the next? Yeah. So this is the main structure of the income statement. Basically, the basic trade that is highlighted here is sales minus COGS. For recollection, COGS is the cost of the goods that we've already sold. So let's say sales and COGS are the two items that come under basic trade, क्योंकि ये हमारा core operation का part है. That is the core what we're here to do business for. उसके बाद once we get out sales and the cost of the goods that we've sold, this gives us the net value, gives us gross profit. This is an important like figure. Gross profit is basically, let's say I sell stuff worth 1 lakh, 1 लाख रुपए की मेरी सेल हुई और 40,000 रुपए मेरा कॉस्ट था, तो ग्रॉस सिंपल 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 मेरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट. अभी मैं मार्केटिंग का एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस, ये सब कुछ नहीं लूंगा. मैं सिर्फ सेल्स जितने की हुई है माइनस ये जो मैंने इन्वेंट्री बेची है उसका कॉस्ट कितना था, जस्ट दैट कम्स अंडर. ये दोनों का एडजस्टमेंट इज बेसिक ट्रेड एंड इनका एडजस्टमेंट इज ग्रॉस प्रॉफिट. After gross profit, we deduct other indirect expense. These three are called indirect expenses. Marketing expense, general expense of like let's say wear and tear, पेन, स्टेशनरी, ये सब. अगर मेरा कोई दूसरा बिजनेस है, लेट्स से मैं आईटी फर्म है, सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, तो उसमें जो भी एडिशनल चीजें चाहिए, दोज वुड बी माय indirect expense. So marketing, administrative and distribution expense, once we get these out of gross profit, we come down to something called an EBITDA. EBITDA is basically earnings before interest, tax, depreciation and amortization. After EBITDA, we'll take out depreciation and we'll get to EBIT, which is earnings before interest and tax. Now, finally, we will take out interest. Interest is basically the cost of buying the debt. कोई भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट भरते हैं, that is what comes here. And after interest only, so up until here, since the first entry up until EBIT, this is all core part of the business. So this all comes under operating. After this only we add financing, since interest comes under financing, direct financing cost. And non-operating income is also something that is not related to the core working of the business. That is why these both come under non-operating. And after this we reach to something called an EBT, which is earnings before tax. ये basically हमारा final earning है. Let's say लाख रुपए मेरे सब कुछ सारे expenses निकाल के मेरा 1 लाख का profit है. This is where we come to 1 lakh. Remember, इस 1 लाख में अभी टैक्स अकाउंट नहीं करा है हमने. तो लेट्स से द इनकम टैक्स रेट इज 10%. तो 1 लाख में से मैं यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करूंगा, दैट इज 10,000. तो फाइनल मनी दैट आई रीच टू, इसके बाद मेरे कोई और ऑब्लिगेशन नहीं बचे, इज कॉल्ड पैट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. This is also known as net income. Net income is basically after subtracting all the expenses from all your incomes. Cool. I'll get to the next one. So net income is basically excess of revenues over all of your expenses. This is pretty much self-explanatory. Revenue or turnover is a wider term that is used for sales.
तो कई बार ना कल के क्वेश्चन में ये हो सकता है सर लाइक ट्राइज टू प्ले विद लाइक नेम्स समटाइम्स इन एमसीक्यूज, तो वो तुम्हें सेल्स की जगह टर्नओवर बोल दे कि टॉप लाइन कोर बिजनेस के उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या लगता है, सीओजीएस एंड डैश। तो टर्नओवर वहां पे ऑप्शन में होगा, सेल्स नहीं होगा, तो यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट। रेवेन्यू, टर्नओवर एंड सेल्स कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। These are basically the same thing. And EBIT is the level of operating income, while EBITDA is the cash operating income. I'll show it back for like better clear. Yeah. So before EBIT, as you might have noticed, every item here was part of our operating. So EBIT shows us the operating income, whereas EBITDA, right? Yeah. So EBITDA is the cash operating income. Wait, how is that? Level of operating income, EBITDA is the cash operating income. These are more or less the same. Basically, I don't see any bifurcation here. The only thing is, since depreciation is a non-cash expense, EBITDA तक हमारा जितना भी है वो कैश वाला है। बिजनेस कैसा चल रहा है, धंधा कैसा चल रहा है, वाली चीजें। डेप्रिसिएशन इज समथिंग जिसका हमें एक्चुअली कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, ये हम बस फॉर्म में इंटरनली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस मीनिंग हमारी जेब से कोई खर्चा नहीं जा रहा है डेप्रिसिएशन के लिए। We just put that down on asset value to for internal purposes. So there's multiple types of expenses that can be classified under various heads. Again, part of theory. If it's a manufacturing company or administrative, marketing or distribution, so these are the functions of the expense. I mean, the cost related to manufacturing the goods that I'm selling would come under manufacturing, of course. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो हमारा चलाने में जो भी खर्चा आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड बाय नेचर इट इज depreciation one we talked about, salary, rent, taxes, so on and so forth. I'll move on through this slide since it is just basic terminologies. Now this again, I was not present in this class, but I went through the Excel, and apparently this was not solved in the class, or at least I didn't find the working for it. The only thing to pay attention to is here is in the initial A and B cases. In the A case specifically, हमने 100 रुपए का माल बेचा है और वो माल का खर्चा ही 110 हो गया था, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही नेगेटिव है। इसके बाद जितने भी एक्सपेंस हैं ये हमारे लॉस को वाइडन करते जाएंगे। दैट्स हाउ वी एंड अप एट अ वाइड लॉस ऑफ -31. In case number B, we sold stuff worth 130 rupees, and the cost of that stuff was 110 rupees. So gross profit here became 20. I hope this is resonating with the framework that we just did. Again, marketing, administrative, and distribution expenses have been charged here as per the case, and so was depreciation. EBIT here, after adjusting for like marketing, administrative, and distribution and depreciation expense, what we are left with is EBIT. And again, interest, non-operating income, EBT, and PAT. These are all sorted for. Only the case 3 is the one where we're actually turning out a net income positive. Otherwise, both the A and B cases are income negative. ऐसे कोई statement देके उससे related interpretation पूछ सकते हैं सर. So if you have any doubt in like any of the heads or any of the items here, you can let me know. This was not a numerical, so we didn't think of. इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस में क्यों नहीं है? Yeah, very good question. I missed that item intentionally. So basically, right question here. EBT में -44 है, which means 44 rupees का हमें loss हुआ होगा. So then हम हर question is कि एक तो tax minus में क्यों नहीं है, and second वो add क्यों हो रहा है. There's something called a deferred tax asset. उसका मैं very simple terms में तुम्हें मतलब बता देता हूँ. So उसका basically point ये होता है कि मान लीजिए अगर मुझे इस साल मेरे business में loss हुआ है, let's say loss of 100 rupees, तो मैं उस loss के चक्कर में जितना tax मुझे कटने वाला होता, अभी तो नहीं होगा क्योंकि loss पे तुम tax नहीं दे सकते, तुम tax सिर्फ तुम्हारा profit पे कटता है. If you are turning a loss, then you don't have to pay a tax. So अगर तुम्हें loss हुआ है and उस पे कोई tax, अगर वो profit होता तो उस पे payable होता, उतना अमाउंट ना तुम ट्रांसफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रूल्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली. तो मान लीजिए मेरा 100 रुपीज का लॉस है इस ईयर में,
एंड उस पे मेरा टैक्स बनता 10 रुपए का, तो वो जो 10 रुपए है ना जो मेरा डिडक्टेबल है इस साल का, वो मैं अगले साल पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इससे होगा ये कि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और उस पे 10 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को देने थे, तो मैं बोल दूंगा लास्ट ईयर मुझे इतने का ही लॉस हुआ था, तो इसलिए ये टैक्स नहीं लगेगा। सो वो जो अमाउंट है एज अ पॉजिटिव दैट कम्स अंडर हियर। वाज तो दैट ये जीरो क्यों नहीं हो सकता ये? बिकॉज इफ इट्स अ लॉस ये देन देयर हमारा शुड नॉट। एसेट है। This would be our deferred tax asset as they call it. So basically ये अगले साल के लिए ट्रांसफरेबल है ये वाला लॉस। तो अगले साल अगर मुझे 44 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ, तो मैं ये -44 दिखा के बोल दूंगा कि मेरा नेट नेट ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो डेफर्ड टैक्स एसेट वाली चीज के चक्कर में यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें फायदा हो सकता है इफ वी आर इन लॉस Yes, इन दिस yes, करंट। yes. एंड ओनली सिर्फ यहाँ पे ही नेगेटिव टैक्स चार्ज हुआ है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही हमारी एक्चुअल पॉजिटिव इनकम हुई थी। तो इसको करंट ईयर किस में numbers थी? नेक्स्ट ईयर में माइनस नहीं करते? अभी डेफर्ड टैक्स एसेट करके एक और नया कॉलम लाइक एक और नई चीज यहाँ पे आ जाएगी 13 रुपीज प्लस 13 की। नेक्स्ट ईयर हम अगर टैक्स इसमें से राइट ऑफ कर रहे होंगे तो ये -13 हो जाएगा, बट गिवन दैट नेक्स्ट ईयर हमें प्रॉफिट हो। बट एक ही जगह अकाउंट होना चाहिए ना, या तो दिस ईयर में प्लस हो रहा है या नेक्स्ट ईयर में माइनस हो रहा है। नहीं 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 नहीं, सो बेसिकली ये एक एसेट है जो हम नेक्स्ट ईयर रिडीम कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे कि 13 रुपीज का हमारे लिए टैक्स का एसेट बन गया जो मैं नेक्स्ट ईयर में रिडीम कर सकता हूँ। तो अभी मैंने वो 13 रुपीज का एसेट अभी रिकॉर्ड कर लिया, नेक्स्ट ईयर में इसको -13 कर दूंगा क्योंकि ये इस साल के इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड ही है, इसीलिए मैं इस साल इसको +13 कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर में अगर इसे रिडीम करूंगा तो इट विल बी -13 एंड बैक टू जीरो। ठीक है, मतलब नेट नेट जीरो हो गया। ठीक है। या आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड सर ने ये कराया था क्लास में, बट आई टोल्ड दिस एनीवेज, अगर कल आता है तो वी कैन टेक केयर ऑफ इट। बट वो डेफर्ड टैक्स हाँ। लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। लायबिलिटी है क्योंकि उसने मेरी नेट इनकम पॉजिटिव हाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। हाँ, राइट राइट, बट द एडजस्टमेंट इज द सेम एज आई सेड। एसेट नेक्स्ट ईयर के लिए तो एसेट ही है ना वो। अच्छा, लायबिलिटी है बट ये एग्जाम में आएगा नहीं, I have तो to करने की जरूरत हाँ नहीं है। एग्जैक्टली, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। बस एक कुछ ऐसी टैक्स एसेट लायबिलिटी जैसी कोई चीज होती है ठीक है। जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस बन जाता है डिस्पाइट ऑफ यू मेकिंग अ लॉस। ये सर ने आई डोंट थिंक क्लास में कवर करा है, तो वी कैन जस्ट मूव ऑन। ठीक है। बस एक ही चीज नोट करने की जरूरत है यहाँ पे टैक्स वाले में कि सिर्फ सी वाले केस में देयर इज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज सिर्फ वहीं पे प्रॉफिट हुआ था एंड टैक्सेबल इनकम is only applicable when you have a positive profit or positive income. अगर तुम्हें लॉस हुआ है तो there is no tax, of course. Cool, moving on. This is again the same structure for our income statement or the profit and loss statement. इसमें दो तरह के हेड्स बनते हैं। ऑपरेटिंग इनकम विच इज बेसिकली आवर डे टू डे धंधा कैसे चल रहा है, जो भी हम कोर बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आई एम रनिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो सॉफ्टवेयर बेच के जो भी मेरा बिजनेस हो रहा है और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है दैट विल बी माय ऑपरेटिंग। एंड सॉफ्टवेयर के अलावा मेरी जो भी एडिशनल इनकम हो रही है दैट विल कम अंडर नॉन ऑपरेटिंग ऑब्वियसली। नाउ अंडर ऑपरेटिंग देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट जो कि क्लियरली तुम्हारा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आता है, that is gross profit. Sales, other revenues and minus cost of the goods you've sold. Other revenues is again core business वाले ही होने चाहिए, तभी operating के अंदर आएंगे। Then operating expenses, your sales, your marketing, administrative, research, depreciation, all of that is your operating expense. Non operating income में again जैसे कि तुमने कोई investment करी होगी दूसरी कंपनी में जिसका तुम्हें डिविडेंड अभी मिला है या फिर जिसका तुम्हें रिटर्न अभी मिला है, तो ऑल ऑफ दैट विल कम अंडर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर इनकम, एंड इन सब में से फिर टैक्स भी नॉन ऑपरेटिंग में ही आता है। दिस इज बेसिकली जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ हाउ द इनकम स्टेटमेंट फ्लोज। सो ओनली टू हेड्स, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग में फिर जो भी है, इनकम है तो प्लस करके लिख देना, एक्सपेंस है तो नेगेटिव करके लिख देना, इतना ही है। बस ये याद रखने की जरूरत है यहाँ पे कि नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आता है टैक्स और ऑपरेटिंग के अंदर आता है डेप्रिसिएशन। बाकी सब तो आई थिंक इंटुइटिव है, यू विल फिगर इट आउट। Cool. Sir also showed the BYD का case study about how they are making their money. So इसमें बस वही जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट का बाइफर्केशन देखा है उसी तरह से सर ने इसका इनकम बाइफर्केट करके दिखाया था।
क्योंकि ये कल के केस में डायरेक्टली BYD से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, आई एम स्किपिंग थ्रू दिस स्लाइड. We can come back later if time permits. So see here, sir has asked us to calculate different levels of profitability. Levels of profitability means by gross profit, EBITDA, EBIT, EBT and PAT. ये सारी चीजें निकाल लें. So here जितना भी यहाँ पर इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट आ जाएगा. बेसिकली ये आप कर लोगे तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट. You can identify heads here and like put them under different buckets. Sir also didn't do the numerical for this, so we'll take the next slide. Visible. One sec. Right. This is done. This was done. This was done. रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगला कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन है. ये भी एक केस था छोटा सा. It is very self-explanatory. You can just put down the image in GPT. It will tell you. Mostly तो तुम्हें read करके 80% समझ में आ जाएगा. I'll move on to the next concept. Revenue recognition. So revenue recognition में basically what we will try to cover is let's say for an example मेरे dropshipping business में मुझे आज कोई sale आई मेरे website पे. Someone booked an order for let's say a bottle that I was selling. तो वो मुझे पेमेंट आज ही आ गई अगर उन्होंने ऑनलाइन करा था तो. नाउ टुडे आई विल डिस्पैच द ऑर्डर. कल शिप रॉकेट वाला बंदा आएगा, लेकर जाएगा. 5 दिन में वो बंदे के पास पहुंचाएगा. 6 day he'll receive the goods. So the question here remains कि तुम day 1 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, day 5 पे जब वो वहां पहुंच गया था तब करोगे, या day 6 पे जब एक्चुअली फाइनल कस्टमर को गुड्स डिलीवर हो गए तब करोगे. इसका बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि पेमेंट अगर आपको क्रेडिट हुआ है आपके बिजनेस अकाउंट में, सो दैट इज यूनिलैटरल. अभी आपको सिर्फ पेमेंट आया है एंड ट्रांजैक्शन टू वे होता है, राइट? इफ समवन पेज मी समथिंग, आई हैव टू डिलीवर समथिंग. एज लॉन्ग एज द समथिंग दैट आई हैव टू डिलीवर, बॉटल इन माय केस, वो बॉटल जब तक एंड कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा. सो इन दिस स्पेसिफिक केस ऑफ Zodiac, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. Zodiac received the order from a customer on day 1. On day 2, Zodiac verified that they had that thing in the stock and found the article as well. On day 3, they put the order out for delivery, and finally day 5 को final customer को good deliver हो गया. So here the question is, when will Zodiac book its revenue if the payment was COD? COD वाला method I know, I hope you all know. I mean, order उन्होंने book करा, customer ने यहाँ से dispatch हुआ, courier ने deliver करा और उनके घर पहुंचा, cash on delivery उन्हें मिला. तो हम ऑर्डर इस केस में भी तब ही बुक करेंगे जब ए पेमेंट आ गई है, बी जो हमें ऑब्लिगेशन देनी थी पेमेंट के बदले में वो पहुंच चुकी है. सो जिस दिन गुड डिलीवर हुआ था उसी दिन हमें पेमेंट आई और उसी दिन हमने जो गुड डिलीवर करना था वो करा. सो डे 5 के दिन हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे. एंड व्हाट विल द आंसर बी इफ द ऑर्डर वाज प्रीपेड. प्रीपेड एज इन डे 1 को ही तुम्हें पैसे आ गए थे, बट तुमने गुड उन्हें डे 5 को ही दिया है. You would think कि क्योंकि day 1 को तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए तुम वो रेवेन्यू day 1 को रिकॉर्ड कर लोगे, बट अकॉर्डिंग टू accounting principles the transaction is a two-way street. You've already received the money in day 1 and actually you have to deliver on the goods that were promised to the customer. तो day 5 को ही, even though तुम्हें पैसे day 1 को मिल गए थे, day 5 को ही you will record the revenue because that is when the transaction is complete from both the parties. I hope revenue recognition is clear. Yeah. जो फर्स्ट वाला है उसमें even though in COD money is not entered the bank, right, तब भी हम day 5 पे ही रेवेन्यू को रजिस्टर करेंगे. Yes. A transaction मतलब very basic framework. Transaction is a two-way street. पैसा आ गया है, that's one way. सामान जाना चाहिए, कंज्यूमर तक पहुंच जाना चाहिए, that's two way. अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंप्लीट नहीं हुआ तो वी वोंट रिकॉर्ड द रेवेन्यू.
नो, सो द पॉइंट इज कि सीओडी में बैंक में पैसा उसी दिन नहीं आता ना जिस दिन कस्टमर ने दे दिया होता है। पर हमारे चैनल के पास पैसा आ गया है ना। सो यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी का एग्जांपल ले लिया, बट यहाँ पर जोडियाक के लिए उन्होंने दिखाया नहीं है, तो जोडियाक का ही बंदा गया था ऑर्डर देने। अभी आएगा ठीक है। डिफरेंट चैनल वाला आएगा। तो अगर जोडियाक का ही बंदा ऑर्डर देने गया था, उसे कैश मिल गया। जोडियाक का बंदा मतलब मेरी फर्म को पैसा आ गया है, इवन दो कैश में है, बट मेरी फर्म के पास पैसा आ गया है। एंड द डिलीवरी गाय हैज आल्सो डिलीवर्ड द गुड्स ऑब्वियसली। तो दोनों चीजें हो गई, पेमेंट आ गया है और गुड्स सोल्ड हो चुके हैं, तो उसी दिन पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मल्टी चैनल वाला, थर्ड पार्टी चैनल वाला भी आएगा ना? आएगा आएगा आगे ठीक। आएगा। अभी के लिए एक केस के लिए जोडियाक का ही था सब कुछ, डिलीवरी वाला बंदा भी उसका ही था। कोई मूविंग ऑन। So this is basically the concept of cash versus accrual. Case 1 में तो clear है कि जब cash है तभी goods गए, तो it's clear. But case 2 में although प्री-पेमेंट आ चुका था, हमारे पास कैश ऑलरेडी आ चुका था, बट हमें अभी भी जो गुड्स डिलीवर करने थे वो ड्यू थे। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक दोनों पार्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होते, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट डन, व्हिच वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट स्लाइड. So I'll move to case number 2. Again the same thing, Zodiac ने उसे order मिला and goods were delivered on day 5. Here there's one catch, ये वाला line जो है. It is to be kept in mind that the customer has the provision to return the goods within 15 days with a no questions asked policy. तो let's say कि मैं मेरा बंदा गया डिलीवरी वाला और वो गुड डिलीवर करके आ गया, we already have the money. बट देयर इज अ प्रोविजन कि 15 दिन में कस्टमर वो जो गुड्स उसने खरीदे हैं वो वापस कर सकता है. तो क्या हमें यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं, इज द क्वेश्चन. द आंसर हियर इज सिंस both the parts of the transaction are finished, we will record the revenue. But just in case 15 days later the customer returns our product, हम उसको माइनस कर देंगे एक और हेड बना के कि सेल्स रिटर्न हो गया, और हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे रेवेन्यू में से. But on day 5 we will record the revenue. Is that good? Yes. Cool. So this is a different case, very similar one. So on day 1 Flipkart has received the order from a customer. On day 2 Flipkart informed the seller and he confirmed. On day 4 order was picked off by Flipkart from the seller, and day 6 they were out for delivery. Day 8 पे it was delivered and cash was received. तो बेसिक फ्लो ये है कि डे 1 पे फ्लिपकार्ट को ऑर्डर आया, डे 2 को फ्लिपकार्ट ने सेलर को इन्फॉर्म करा और सेलर ने बोला कि ठीक है, इट इज इन स्टॉक. डे 4 को फ्लिपकार्ट का बंदा सेलर के पास जाके स्टफ लेके आया, जो भी उन्हें बेचना था, जो भी गुड्स है. एंड डे 6 को ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी था, एंड डे 8 को फाइनली ऑर्डर डिलीवर हुआ है, जो टिपिकल हमारा ई कॉमर्स का फ्लो होता है जो हम ट्रैक करते हैं. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल फ्लिपकार्ट बुक and the फ्लिपकार्ट ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया कि उन्हें जो ऑर्डर डिलीवर करना था किसी सेलर के बिहाफ पे. यहाँ पे फ्लिपकार्ट का सिर्फ इतना सा ऑब्लिगेशन है कि दे हैव टू गेट द ऑर्डर डिलीवर्ड. सिंस द ऑर्डर इज डिलीवर्ड एंड दे हैव रिसीव्ड मनी, यहाँ पर फ्लिपकार्ट डे 8 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा. एंड क्योंकि सेलर को उसी दिन पेमेंट हो गई थी डे 8 को, सिंस इट क्लियरली सेज हियर सेलर वाज पेड ऑन डे 8 itself. Since the seller was also paid on day 8 itself and जो goods थे वो कस्टमर के पास पहुंच गए, तो seller भी day 8 को ही revenue recognize करेगा. And the third question is what will be the answer if the order was prepaid by a credit card? Again the same answer, credit card से आया है, it doesn't matter. The order has to be delivered to the end customer, तो ये भी day 8 को ही deliver होएगा. If there's no doubt, I'll move to the next case. So this actually has 4 transactions, right? Instead of Yeah. 2. Yes. All yes. 4 have to be 4 completed. transactions, but all 4 are completed on day 8. हाँ, ठीक है. फ्लिपकार्ट को कैश मिला, फ्लिपकार्ट ने जो सप्लायर अपना कट रखना था वो लिया एंड बाकी का सेलर को दे दिया. तो सेलर को भी पेमेंट डे 8 को हो गई, फ्लिपकार्ट को भी पेमेंट डे 8 को हो गई, और कस्टमर को भी जो गुड्स मिल रहे थे वो डे 8 को ही हुआ है. तो ऑल द रेवेन्यूज विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डे 8 इटसेल्फ.
ठीक है. So here another concept comes. अभी तक हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सिर्फ यही सीखा है कि जिसका भी ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट हो जाए और पेमेंट आ जाए, ये दोनों चीजें फुलफिल होती है उसी दिन पे वी रिकॉर्ड रेवेन्यू. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अभी थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल जैसे ही है. So Akashdeep has been contracted by BCCI on 1st Jan 2025 to play for India due to Bumrah's injury. So Bumrah को इंजरी होगी तो किसी और प्लेयर को बुलाया हुआ है. And they're offering him two things. One is Yeah. sitting fees. Yeah. Ayush has raised Yeah. his hand. भाई अनम्यूट कर लिया सीधे हाँ, स्क्रीन पे. प्रियांशु सॉरी यार, एक हाँ, बार बता. इफ यू कुड गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज इट दैट द सेलर बुक्स इट्स रेवेन्यू? इज इट नॉट द केस कि सेलर का काम हो गया जब उसने फ्लिपकार्ट को दे दिया? ऐसा नहीं है. नहीं. तो अच्छा, दोनों केस बता देता हूँ मैं. लेट्स से फ्लिपकार्ट का अरेंजमेंट सेलर के साथ, दो तरह के फ्लिपकार्ट के अरेंजमेंट हो सकते हैं सेलर के साथ, राइट? एक तो फ्लिपकार्ट उनसे इन्वेंट्री खरीद ले एंड नाउ फ्लिपकार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन्वेंट्री, तो सेलर का काम वहीं कट हो गया. देन इट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन डे 4. करेक्ट. गॉट इट. बट अगर सिर्फ फ्लिपकार्ट मीडिएटर का काम कर रहा है कि सेलर का ही प्रोडक्ट है और फ्लिपकार्ट सिर्फ डिलीवरी सर्विसेज ही दे रहा है, तो देन सेलर का रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होगा जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है एंड सेलर को पेमेंट मिल गई है. यहाँ पे क्लियरली बोला है सेलर को डे 8 को पेमेंट मिली है, which kind of indicates कि फ्लिपकार्ट was only the delivery partner here. अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचे, ये फ्लिपकार्ट की भी ऑब्लिगेशन थी और सेलर की भी ऑब्लिगेशन थी. तो ठीक है दोनों ही डेट को खत्म हुई, इसलिए दोनों का हमने डेट. यार. आई आल्सो रिमेंबर, आई थिंक इस क्लास में ना सर हैड मेंशन्ड एन एग्जांपल ऑफ स्विगी एंड जोमेटो डिलीवरिंग. हाँ, वो भी आएगा एज अ आगे आने वाला है. अच्छा ठीक है. वो आने वाला है. यार और डे I'll cover that. 4, अगर इसमें डे 4 पे फ्लिपकार्ट सेलर को डे 4 पे पे कर देता ऑर्डर उठाते टाइम, तो सेलर हाँ. उसी दिन रेवेन्यू बुक कर सकता है ना? Yes, but that is given the fact that अब फ्लिपकार्ट उससे मतलब दो तरह के मॉडल्स पे ऑपरेट करते हैं ना ये ई-कॉमर्स जाइंट्स, जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट. एक तो हो गया कि सेलर से इन्वेंट्री खरीद लिया एंड अब आगे वो दे विल टेक केयर ऑफ द इन्वेंट्री. सो इन दैट केस यस, डे 4 पे सेलर रिकॉग्नाइज कर लेता अगर ट्रांजैक्शन उसी दिन हो जाता. तो कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट का बंदा आया सेलर के पास, उसने गुड्स उठाए, पेमेंट कर दी, तो दोनों काम, सेलर का काम खत्म हो गया, उसने गुड्स दे भी दिया और उसे पैसा भी मिल गया. बट क्योंकि फ्लिपकार्ट सिर्फ यहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहा था, एज एन एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा था, मेन काम सेलर का ही था, तो सेलर का तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक उसका ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग द गुड्स रीच टू द कस्टमर जब तक वो फुलफिल नहीं होता, तब तक इस केस में नहीं हुआ. अभी और आगे केसेस आएंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के, जोमेटो और स्विगी इनके केस में भी, तो इट विल गेट क्लियरर. एक सेकंड, ये थर्ड Yes. वाले पॉइंट का क्या करना है? प्रीपेड बाय नहीं, क्रेडिट कार्ड. हाँ, तो इवन दो ये लास्ट क्वेश्चन में भी था ना सिमिलर चीज, इवन दो पेमेंट मुझे आज आ गई है, जब तक मैं मेरी ऑब्लिगेशन ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स टू द फाइनल कस्टमर, जब तक वो मैं फुलफिल नहीं करूंगा, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करता. ठीक है तो इवन दो कैश आ चुका है, वो अक्रू नहीं होगा. अक्रू तब होगा जब दोनों पार्ट्स ऑफ द, अगेन दोनों साइड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन फुलफिल होए कि मुझे पैसा मिल गया बट फिर मुझे डिलीवर भी करना पड़ेगा, लाइक दैट. सो ये वाले में थोड़ा सा मैथ से बहुत बेसिक ही है, तो मतलब आई डोंट थिंक एक्सेल भी लगेगा. इफ यू ऑल वांट मैं बाद में निकाल लूंगा. सो बेसिकली एक कोई प्लेयर है जिसको बीसीसीआई ने अपॉइंट करा है खेलने के लिए, उनके लिए, तो इसमें दो तरह की चीजें वो ऑफर कर रहे हैं उसे. एक है सिटिंग फी. सिटिंग फी इज बेसिकली द मनी दे आर पेइंग हिम टू जस्ट सिट विद द टीम. लाइक सिट मतलब भाई अगर उसका मैच वो नहीं भी खेल रहा है और बैठा भी है वो बेंच पे, तो भी उसे 60 लाख मिल रहे हैं. पीए हियर इंडिकेट्स पर एनम. तो 60 लाख उसे इस साल पूरे मिलेंगे जस्ट बेंच पे बैठने के लिए. एंड फॉर एवरी मैच ही प्लेज ही विल गेट एक्स्ट्रा 10 lakhs. सो दिस इज हाउ उसका इनकम स्ट्रक्चर्ड है, जो आकाशदीप है जिसे बीसीसीआई रिक्रूट कर रही है. The question says that this contract is valid from 1st Jan through 31st December. तो again पूरा साल 2025 का पूरा valid है. He's making his income statement for FY25 having played 3 matches between Jan to March. How much revenue can he book for 25? तो बेसिकली दो पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन में कि जो आकाशदीप करके जो ये हमारा बीसीसीआई का प्लेयर है, उससे 3 मैच खेले हैं जैन से मार्च के बीच में, और उसे ये सिटिंग फीस मिल रही थी 60 लाख थ्रू आउट द ईयर. ठीक है,
तो इसे FY25 मतलब मार्च तक में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कैसे रिकॉर्ड होंगे. आई विल ओपन माय एक्सेल एनीवेज. Yeah. So 60 lakhs was the sitting fees, and 10 per match was the additional fees. 10 per match. 60 lakh थी ये 12 months के लिए. अब हमारे लिए सॉल्व करने के लिए ये है कि हमें जैन से मार्च तक के लिए कितना रिकॉर्ड करना चाहिए वो जानना है, और मैचेस उसने खेले टोटल 3. तो हम लोग अभी के लिए जो मोस्ट इंट्यूटिव सोल्यूशन जो लग रहा है दैट वुड बी 12 मंथ्स में मुझे 60 लाख मिलने वाले हैं, करेक्ट. तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स हो गए. 12 मंथ्स में मुझे 60 लाख मिलने वाले हैं, तो ऑन अ मंथली बेसिस मुझे 60/12 मिलने वाले होंगे इक्वल्स टू 60/12. ये मैंने निकाल लिया मंथली. तो बेसिकली मुझे हर महीने 5 लाख मिलेंगे अगर मुझे 60 लाख थ्रू आउट द ईयर मिल रहे हैं. नाउ जैन से मार्च तक हो गए 3 महीने, तो 5 into 3 equals to 5 lakh that I'm getting for every month into 3 for 3 months. 15 lakh. ये 15 lakh हो गई मेरी sitting fee. Then match fee would be 10 lakh है मेरा चार्ज, और मैंने 3 मैचेस खेले हैं, तो would be 10 into 3 30. So total would be 45. तो बेसिकली मैं इस साल अगर मैं सिर्फ जनवरी से मार्च तक का रिकॉर्ड कर रहा हूँ रेवेन्यू, सो मैं 3 मंथ्स में 60 लाख का क्या पार्ट मेरे लिए ड्यू था मैं वो रिकॉर्ड करूंगा, और इतने टाइम में मैंने जो मैच खेले वो रिकॉर्ड करूंगा. हियर द प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड इज इफ एनुअल तुम्हें कोई भी इनकम दी है और तुम्हें कोई स्पेसिफिक टाइम तक ही उसे रिकॉर्ड करना है, लेट्स से 12 मंथ्स का दिया है, 3 मंथ्स तक का रिकॉर्ड करना है, तो तुम प्रो रेटा कर लोगे. प्रो रेटा इज दिस 60 lakh for 12 months, so 5 lakh for 1 month, and for 3 months it will be 15 lakhs. I hope this is clear. I'll move on to the next slide if there's no doubts here. So Priyanshu, just a small doubt. We are calculating the revenue at the end of March, I'm assuming, right? Yes, Or yes. on the 1st of April. Suppose we were नहीं, calculating the assume अगर जैन से मार्च बोला है तो हम assume करेंगे कि तीनों मंथ्स पूरे पूरे लिए जा रहे हैं, मीनिंग अच्छा लिखा हुआ है यार यहाँ पे 1st Jan to 31st. अच्छा ये तो दिसंबर वाला है. नहीं, अगर जैन टू मार्च दिया हुआ है unless they say something else, हम assume करेंगे कि जैन टू मार्च लिखा हुआ है तो जैन फेब मार्च तीनों के लिए कर रहे हैं, तो मार्च एंड तक. Because in this question it's not clearly mentioned कि at what point of March the year end are तक we calculating the revenue. हाँ, जैन टू मार्च दिया है ना ब्रो, तो अनलेस दे से समथिंग एल्स हम पूरा करेंगे. लेट्स से यहाँ पे मिड मार्च तक का ही रखते, तो हम मार्च के लिए जैसे मंथली 5 लाख है, 15 मार्च तक के लिए अगर बोलते फॉर एग्जांपल, तो 15 मार्च तक के लिए 5 लाख में से 15 डेज के लिए, मतलब अगर मंथ का 5 लाख है तो 15 डेज का हो गया तुम्हारा 2.5 लाख. तो मार्च का 2.5 ले लेते, जैन फेब का 5 ले लेते. Just like that. Got it. Thank you. Yeah. Moving on, McDonald's walk-in store has just sold 5 burgers for 400 rupees, which has been picked by Swiggy delivery boy. ये वाला question है, someone was asking about. The order expected to be delivered in next 30 minutes to the consumer. Can McDonald's book their revenue before their order is delivered by Swiggy? So guys, as we previously discussed, Swiggy यहाँ पे सिर्फ delivery का काम कर रहा है. एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकडोनल्ड्स और स्विगी दोनों की है कि कस्टमर तक जो भी उन्होंने खरीदा है वो पहुंच जाए. अनलेस गुड्स डिलीवर नहीं होते हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते. तो 30 मिनट जब तक राइडर ऑन द वे है कस्टमर के, तब तक इन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. तो जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा उसके बाद यू कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर बोथ स्विगी एंड मैकडोनल्ड्स. कूल. ग्रॉस वर्सेस नेट रिपोर्टिंग ऑफ रेवेन्यू एग्रीगेटर्स डिलेमा. हाँ, यहाँ पर से थोड़ा सा एग्रीगेटर वाला अलग से आता है कि हाउ डू दे रिकॉग्नाइज देयर रेवेन्यूज. सो एग्रीगेटर इज बेसिकली योर Myntras and Flipkarts and Amazons and so on. So Adidas has manufactured a shoe for 85 which is selling for 100. तो
नहीं यार, एडिडास का उसमें कॉस्टिंग 85 है। आयुष वाज राइट एक्चुअली, उसमें नहीं होगा वो। उसमें मैकडोनल्ड्स तभी रिकॉग्नाइज कर लेगी जब वो रेवेन्यू अपना, जब वो स्विगी को जैसी हैंड ओवर करेगी। इवन IFRS 15 भी यही कह रहा है, इंड AS 115। नहीं तो ChatGPT नहीं, करके अगर देखिए एक बार। अगर हम नहीं, लोग मतलब इसके लिए कंडीशंस हैं कि अगर स्विगी का ऑपरेटिंग मॉडल ऐसा है कि वो इनसे स्टफ लेके फिर इन्हें बाद में अलग और से पेमेंट करते हैं, then मुझे yes. ऐसा लग रहा But है अगर कि ये लोग सिर्फ कमीशन बेसिस पे करते हैं, देन नो। डिफरेंट आंसर इसलिए भी होगा क्योंकि उसने नीचे लिखा भी हुआ है, लर्निंग पॉइंट डिफरेंट प्लेयर्स इन Different वैल्यू players in चेन, value chain डिफरेंट have different revenue recognition types. हाँ This is what threw me off as well. But क्योंकि अल्टीमेट डिलीवरी ऑफ द गुड्स सिर्फ स्विगी के ऊपर नहीं है, मैकडोनल्ड के ऊपर भी है। अगर स्विगी उनसे इन्वेंट्री खरीद लेता है फिर आगे बेचता है, इफ दैट्स हाउ स्विगी ऑपरेट्स, देन दैट इज ट्रू, योर पॉइंट इज ट्रू। बट अगर स्विगी इन्वेंट्री नहीं खरीदता है और ये सिर्फ ऊपर कमीशन पे ही काम करते हैं, देन जब तक स्विगी डिलीवर नहीं करेगा तब तक मैकडोनल्ड विल नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। सर ने क्या बताया वो ही कर लेते हैं। यार सर ने, जहाँ तक मैं सर क्लास ने में आई थिंक था, इस केस में सर ने- एग्रीगेटर वाला बताया होगा। तो नहीं, ये हाँ सर ने यही बोला है, सर ने यही बोला था कि जब स्विगी वाले को दे दिया है तो रेवेन्यू बुक कर लिया था। और मतलब उसके स्विगी बाद- का मॉडल ये वाला होगा फिर कि वो इन्वेंट्री लेके बाद में पेमेंट सेटल करते हैं। Correct. It actually depends on the contract that the businesses have. इस केस में सर ने बताया था the Exactly. contract is such that Swiggy takes the Yeah. responsibility of delivering once it is collected. Like the delivery partner collects the food from McDonald's. That is why एक बार McDonald's ने Swiggy को दे दिया, भाई McDonald's का काम खत्म, अब Swiggy का काम है। इस केस में हाँ, इस केस में। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ कमीशन बेसिस वाला है तो नहीं होगा ये। बट क्योंकि सर ने इसमें स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट दे के बताया कि इस वाले में स्विगी जब ले लेगा तब इसका खत्म हो जाएगा, मीनिंग स्विगी विल पे मैकडोनल्ड्स अलग से। तो स्विगी इज द न्यू बायर नाउ। तो मैकडोनल्ड्स का काम यही तक खत्म हो गया, मैकडोनल्ड्स ने डिलीवर करा और स्विगी ने इसका पेमेंट कर दिया। So then it is up to Swiggy. Now it is on Swiggy. So McDonald's will record the revenue once the delivery boy has taken, and Swiggy will record the revenue once the delivery has been made. अभी और इसके 3-4 questions हैं, it will get clearer. बट मैकडॉनल्ड्स को उसी टाइम पैसे थोड़ी मिले जब स्विगी ने ऑर्डर ले लिया। सर ने बोला Not- हुआ है इसमें assumption, अगर नहीं बोला हुआ होता तो दोनों का तभी होता जब डिलीवर हुआ था। हाँ। सर ने इसमें स्पेसिफिकली वो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था। अभी और 3 प्रॉब्लम्स हैं इसी तरह के एग्रीगेटर वाले, वेरी वेरी स्पेसिफिक। इसमें नंबर्स के साथ होगा, यू विल गेट अ मच क्लियरर पिक्चर। वी कैन कम बैक टू दिस इवन आफ्टर दैट अगर तुम्हें डाउट होगा तो। कूल। हाँ चलो या यार मतलब आई हैड टू हियर अ यस। अगर डाउट है तो आई हैड टू क्लियर। सो एग्रीगेटर्स डिलेमा में बेसिकली ना एडिडास और कोई एग्रीगेटर का बोला हुआ है, यहाँ पे नाम नहीं दिया तो हम मिंत्रा अज्यूम कर लेते हैं। एडिडास का कोई शू है जो उन्हें 85 का जिसका उन्हें नेट कॉस्ट पड़ता है और वो 100 रुपीज का बेचे हैं। एंड ये उनका डायरेक्ट चैनल से बेच रहे हैं 85 के कॉस्ट वाला 100 पे। बट अगर ये किसी एग्रीगेटर के थ्रू बेच रहे हैं, लेट्स से मिंत्रा फॉर एग्जांपल, तो अगर ये मिंत्रा के थ्रू बेच रहे हैं तो ये तभी बेचेंगे जब ये एक्चुअली 10% और उस पे कमीशन चार्ज कर पाए। एग्रीगेटर को भी कुछ तो चाहिए, तो इसके ऊपर वो 10% देते हैं एग्रीगेटर को। नाउ एग्रीगेटर स्पेंड्स 8 रुपीज पर दिस थिंग पर ऑर्डर दे डिलीवर। सो लेट्स से यहाँ पे 100 रुपए का इनका टोटल रेवेन्यू था, इसके ऊपर ये 10% कमीशन देते हैं एग्रीगेटर को। 100 पे 10% बेसिकली 10 रुपए मिल रहा है मिंत्रा को। सो मिंत्रा टेक्स एडिशनल 10 रुपीज फ्रॉम एडिडास and Mintra's expense was 8 rupees. So how much is the profit or net income of the aggregator? Pretty simple, 2 rupees. Now the second question here is how much revenue should the aggregator show? यहाँ पर ही वो 2 केस वाली चीज आ जाती है and उसका solution आगे डला हुआ है। Yeah. सो अगर तो मिंत्रा सिर्फ इस मॉडल पे ऑपरेट करता है कि तुम्हारा जो भी सेल हो रहा है वो तुम ही रखो, मुझे सिर्फ ऊपर के कमीशन से मतलब है, सो देन सिर्फ 10 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा मिंत्रा, राइट? एंड जो उसका ऊपर सिर्फ कमीशन था, दैट इज 10% ऑफ द 100 रुपीज जो उसको मिल रहा था, सिर्फ 10 रुपीज रिकॉर्ड करेगा। एंड क्योंकि 8 का एक्सपेंस था तो प्रॉफिट 2 है। नेक्स्ट अगर केस हम मान लेते हैं कि एग्रीगेटर परचेज कर लेता है एडिडास से एंड देन दे सेल इट देमसेल्व्स, तो उस केस में जैसे ब्लिंकिट का टिपिकल एग्जांपल है, ब्लिंकिट का ना
रेवेन्यू की जगह ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, विच इज बेसिकली जो भी उन्होंने आइटम्स बेचे हैं उनका टोटल कॉस्ट। तो हियर इन दिस केस, क्योंकि उनका सेलिंग प्राइस हो गया 100 प्लस 10% कमीशन 110 minus COGS would be 100 क्योंकि they paid 100 to Adidas for this shoe and then 8 उनका एक्सपेंस हुआ। अगेन प्रॉफिट दोनों केसेस में सेम ही है, बट रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो डिपेंड करता है। अगर कमीशन बेसिस पे है विच इज कॉल्ड एजेंट्स वाला, अगर इनका काम है तो सिर्फ 10 रुपीज रिकॉग्नाइज होगा, और अगर इनका काम रीसेलर का है तो देन 110 होगा। दिस वुड बी योर मिंत्रा एंड दिस वुड बी योर ब्लिंकिट। कि ब्लिंकिट किसी भी सेलर से खरीद लेता है स्टफ, देन दे सेल थ्रू देयर चैनल, तो उनका टोटल जो भी उन्होंने बेचा उनका टोटल जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है दैट इज व्हाट दे रिकॉर्ड, एंड एग्रीगेटर्स टिपिकली रिकॉर्ड ओनली देयर कमीशंस। I hope it is a little more clearer with this problem. Yes. So यही हुआ ग्रॉस रिपोर्टिंग और नेट रिपोर्टिंग, which is basically sales and certain elements of COGS are reported separately. Sales are higher under this approach. Clearly इस वाली अप्रोच में सेल्स हमें ज्यादा दिख रही है, ऑल्दो नेट प्रॉफिट दोनों केसेस में 2 रुपए का ही हुआ है, बट यहाँ पर सेल ज्यादा दिख रही है। So sales and certain elements of COGS are reported separately and sales are higher under this approach. Under the net reporting approach, sales and certain elements of COGS are reported on net basis. Gross sales minus COGS. तो हमने बस clear 10 रुपीस का कमीशन माइनस 8 रुपीस का एक्सपेंस करके सीधा clear डाल दिया। Sales are lower under this approach clearly क्योंकि हम सिर्फ कमीशन रिकॉर्ड कर रहे हैं rather than the entire value. So जो 110 वाला था that is called gross reporting and जो 10 वाला था that is called net reporting. डिपेंड करता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीगेटर के साथ। Now another type of sums coming in here which is earning per share. तो सर ने एग्जांपल बताया था which is basically earning per share का basically मतलब ये है कि तुम टोटल फर्म के सारे एक्सपेंसेस सारे इनकम्स के बाद जो उनकी नेट अर्निंग होती है, you take that net earning and then you divide it by the number of shares in the company, which will give you कि एक शेयर पे मुझे कितनी इनकम मिल रही है। Let's say I am the net income of the company is 5 lakh rupees and there's 1 lakh shares that the company has issued. So 5 lakh by 1 lakh which is 5 rupees. So for every share that I have, the company is for every share that the company is issued, they are earning 5 rupees. That is what earning per share indicates. सो सर ने एग्जाम्पल दिया था जेडीपी वाला। बेसिकली अगर मान लीजिए 2 कंपनियां हैं जो दोनों सेम प्रॉफिट कर रही है, बट एक में 10 लाख शेयर होल्डर्स में स्प्लिट हो रहा है वो, और एक में 1 लाख शेयर होल्डर में स्प्लिट हो रहा है, तो क्लियरली जिसमें 1 लाख शेयर होल्डर्स में स्प्लिट हो रहा है दे आर द रिचर वन, इवन दो नेट इनकम दोनों की सेम है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बना, ओनर्स के लिए कितना पैसा बना। तो अगर कंपनी में कम स्टॉक इश्यू कर रखे हैं तो इट इज बेटर फॉर द फर्म। इस एग्जांपल से सर ने यही बताया था। So here's the formula. As I said, earnings attributed to equity shareholders upon number of shares outstanding. So earning attributed to equity shareholders का क्या मतलब हुआ कि net income जो हमारे पास बची है minus there's this 2 types of shareholders primarily. एक हो गया तुम्हारा common shareholders, दूसरा हो गया preference shareholders. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव दिस स्पेशल फीचर कि अगर बिजनेस इनकम कमाता है तो उन्हें एक फिक्स्ड रेट पे हम लोग डिविडेंड देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस। प्री डिटरमाइंड होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उन्हें हम जो भी प्री डिटरमाइंड रेट है, लेट्स से 2% 5% व्हाटएवर, उस पे वी विल पे देम ऑफ फर्स्ट। सो प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर व्हिच हैव सम फीचर ऑफ डेट एंड सम फीचर ऑफ कॉमन इक्विटी। दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न लाइक अ डिविडेंड, fixed payout which is like a feature of debt, but they also get it only when profits are enough. Let's say business loss बना रहा है तो preference shareholders को कुछ नहीं मिलेगा। अगर income बना रहे enough कि preference shareholders को मैं पे कर पाऊँ तभी preference shareholders को पैसा मिलता है। So earnings attributed to equity shareholders is basically net income minus payment to preference shareholders. उसके बाद जो भी बचेगा that will be split among the normal common shareholders of the company. So that will be divided by number of common shares outstanding for the firm. अभी यहाँ पे एक sum भी होगा, it'll get clearer. अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो हर बार प्रेफरेंस शेयर हर बार वो डिविडेंड देंगे ही देंगे प्रेफरेंस वाले में।
या डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, बट जनरली प्रेफरेंस वाले वही होते हैं जिनका प्री डिटरमाइंड होता है कि इस रेट पे उन्हें हर बार डिविडेंड मिलेगा ही, रेट विल इन बी केस इनकम इज इनफ. हाँ रेट इनकम इज इनफ. हाँ मतलब यस, प्री डिटरमाइंड. लेट्स से इनकम इज इनफ और रेट भी प्री डिटरमिन्ड है, बट कभी ऐसे कंडीशन हो सकती है कि कभी नहीं ना दो वो शेयर होल्डर्स के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन पे होता है, बट जनरली अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो हर बार शेयर होल्डर्स को एक बेसिक जो उनका डिविडेंड परसेंटेज है वो देते ही है. ओके आयुष भाई. प्रियांशु ये सेशन 9 में करवाया था यार क्लास में? ब्रो मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैं टेक में जो है मैं सब कवर कर रहा हूँ. अगर नहीं कराया था तो वी कैन स्किप. ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब लेट्स जस्ट टेक अ नहीं कराया था, नहीं कराया था, नहीं आई कराया डोंट था. रिमेंबर डूइंग मुझे दिस. नहीं करना चाहिए हमें. सेशन नहीं बट ऐसे तो जो 10th वाली जो अभी पीपीटी आएगी उसमें हमें सिर्फ 14 अगस्त था, तब काफी लोग नहीं आ पाए थे, बारिश हो रही थी बहुत तेज. तो हमारी जो क्लास थी 14 अगस्त पे, तब उसने सिर्फ लीफो फीफो तक कराया था. उसके बाद भी उसने डेप्रिसिएशन वो भी नहीं कराया था. वो सब चीजें भी नहीं कराई है जो अभी 10th स्लाइड में आएंगी. और मेरे हिसाब से फिर टेस्ट में ये लोग सब कुछ पूछेंगे. सब कुछ देते हैं क्योंकि ब्रो टेस्ट 1 में यही हुआ था. हमारी क्लास में आयुष कम चीजें कवर हुई थी. वी रेज्ड इट अप विद द टीए एज वेल, बट हाँ, टेस्ट 1 में इन्होंने यही किया था. नहीं आएगा, बट सब कुछ आया था उसमें. तो आई वाज थिंकिंग कि जो पीपीटी में वी शुड कवर. सर कैंसल्ड द क्लास बिकॉज़ ये वाला तो You don't remember studying. I mean, it's up to you all. But ठीक है, anyways, तो we can skip. इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार ईपीएस कैलकुलेशन को, फिर 10th शुरू करते हैं. गाइस मैं वही बोल रही हूँ कि सिलेबस में अगर दिया हुआ तो हमें कर लेना चाहिए जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. हाँ, ईपीएस कैलकुलेशन करके 10th पे चलते हैं फिर. Cool. 1 मिनट का ब्रेक दो बस मुझे. I need to get water. वेल डिजर्व्ड. वाटर ले रहा है या रम ले रहा है यार प्रियांशु? भाई अगर रम आप जेप्टो वेप्टो सॉरी रैपिडो करा दो तो आई विल नॉट डिनाई. रेवेन्यू का बुक होगा. मैं बोला तो जैसे ब्लॉग पे कल जब हिमानिश और कश्यप पे कर देंगे तब. भाई क्या तुम्हें सब कुछ पढ़ना है? मतलब सेशन 10 की खत्म कर ही ले ऐसा. यस प्लीज. यस यही है भाई, कर लेते हैं. कल सुबह नहीं हो पाएगा, कर लेते हैं भाई. अब मतलब खत्म ही करते हैं ना, जब शुरू किया है तो आधा पौना घंटा लगेगा. जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते. हाँ अब मैं थोड़ा सा पेस अप कर लूंगा. हाँ, अगर पेस अप कर ले. और ज्यादा लग रहा हो तो बता देना. उदिति इतने ये प्रेफरेंस डिविडेंड वाला कोई क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे भी. प्रेफरेंस उसने खुद ही नहीं कराया है. तो भाई अजीब लोग है यार, कवर सब कुछ कराते नहीं है बट पूछते सब कुछ है. मतलब इतना कंफ्यूज. प्रियांशु द सेशन इज रिकॉर्डेड. कट करा लेंगे. ठीक है यार, मतलब दैट वाज अ जेन्युइन रैंट. आई डोंट माइंड दैट गोइंग अप. एनीवेज तो भाई ये फिर EPS calculation do you all want to do or do you all want to like move to session 10? आई थिंक लेट्स जस्ट मूव टू सेशन 10 एंड कौन सा चीजें कवर हुई हैं वो तो डेफिनेटली कर लेते हैं. क्विक. Cool. But I into session 10. ठीक है, इनको करवा देना चाहिए था मतलब सबको वैसे ईपीएस कैलकुलेशन. बट ठीक है, चलो इफ यू कैन डू इट क्विकली लेट्स जस्ट डू इट. प्रॉब्लम और we can do whatever we've like whatever we've covered और फिर ये बाद में कर लेंगे जब टाइम होगा तो, अगर टाइम होगा तो. मैं सेशन 10 कर रहा हूँ. एंड में एक EPS का क्वेश्चन करा दूंगा विद. हाँ भाई इसमें भी प्लीज मुझे बता देना. अगेन मैंने ये लास्ट के दोनों सेशंस नहीं करे थे. जो सिलेबस मतलब जो सर ने नहीं कवर कराया होगा तो प्रेफरेबली विल डू दैट. नहीं मैंने करा था, मैंने 10th अटेंड करा था उसका. तुम्हें देख बता दूंगा. हाँ मतलब बस बता देना. सॉर्ट. तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस शीट में डीप डाइव है. बेसिकली एक आइटम को दे आर गोना कैटेगराइज अंडर डिफरेंट हेड्स. थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लेना. इससे अराउंड MCQs ही हैं, सब्जेक्टिव ही हैं एंड मोस्टली डिस्क्रिप्टिव वाले ज्यादा आएंगे. इसमें सम्स इस वाले एडिशन में है ही कम. तो वी विल जस्ट गो थ्रू दिस. एक बार बस देख लेते हैं क्या किसके अंदर कैटेगराइज्ड है. भाई पूरा पेपर MCQ है ना? हाँ MCQ ही है. बस
MCQ है हाँ तो I'll start with liability and equity एंड वाला आई थिंक side. अभी मुझे एक याद आया है शेयर कि जो 8th वाला जो पीपीटी था जिसमें हमने शायद से मिस ये करा कि सीएफओ पे क्या इम्पैक्ट होगा और पैट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चीज बढ़ेगी क्या चीज कम होगी, वो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है. हाँ वो वाले तो डेफिनेटली हम्म. आएंगे. वो वाले पे इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करा. CF और पैट वाले यार तुम लोग कर लेना और फिर तुम्हें अगर डाउट होए तो मेरे से पूछ लेना. मैं 2 बजे तक जागा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है. मैं बस सेशन 10 फटाफट सम कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इको में भाई पीछे हूँ मैं. चल के कवर करते हैं. विल सी जितना जितना टाइम परमिट करता है. विल ट्राई टू डू दैट एज वेल. सो बैलेंस शीट में बेसिकली शेयर कैपिटल और रिजर्व्स उन्होंने बहुत बार मेंशन करा हुआ है. दिस कम्स अंडर रिस्क कैपिटल बिकॉज दीज आर द वंस हु आर टेकिंग द लाइक एक्चुअल रिस्क. और बोरोड कैपिटल इज बेसिकली वही किसी से भी बोरो करा हुआ हर तरह के लोन्स इसके अंदर आ जाएंगे. सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ. एंड शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ये सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स आर मोर इंटेंडेड फॉर द डे टू डे धंधा कैसे चल रहा है वाली चीजें. तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के अंदर आएगा. Now accounts payable, advance receivable and advance received and unpaid expenses, all of these are operational obligations. These are liabilities but they are payable in the operational cycle of the business, generally taken as 12 months. So 12 months या general day to day of the business के जो भी obligations है they are called operational obligations. Assets में again plant property equipment defined है, long term के अंदर ही आएगा of course. And investments is something that is non-operational. Investment is particularly where you put down money into assets outside of your business. Let's say you're investing in equity or mutual funds or some passion project of yours. Business के पैसे से basically तुम externally अगर invest कर रहे हो, then this will be a non-operational asset. It will be recorded under assets, but ये business से related. तुम्हारे business से it's not related. Again बाकी के ये जितने भी सारे हैं these are short term assets. Day to day running of the business, धंधा कैसे चल रहा है उसके हैं. Cash, accounts receivable is basically जो भी तुम्हारा पैसा आना बाकी है तुमने सेल कर दिए, कस्टमर से पैसा आना बाकी है. Inventory is your stock, चेंज होता रहता है तो ये भी operational nature है short term. एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी रेगुलर ऑकरिंग सर्विस जिसके लिए तुम ऑलरेडी पे कर चुके हैं. लेट्स से रेंट अगले 4 महीने का मैं अभी दे दिया है तो वो एसेट है कि मैं आगे जाके वो रियलाइज हो जाएगा. दिस इज अ फ्यूचर बेनिफिट फॉर मी बट दिस इज ऑपरेशनल डे टू डे ऑफ द बिजनेस के अंदर है. दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म. Equity refers to shareholders' interest in the assets of the company after subtracting payments required for outsider liabilities. Therefore, it is also referred to as net assets. So, यहाँ पर if you just mathematically look into this, इस वाले को अगर हम छोड़ दें, सिंस एसेट्स एंड लाइबिलिटी और इक्विटी का टैली होता है दोनों का सम, अगर हमें शेयर कैपिटल और रिजर्व का बैलेंस निकालना है तो इट विल बी टोटल एसेट्स माइनस ऑल द लाइबिलिटीज. दैट इज बाय एसेट्स और एसेट्स में से जितने भी हमारे ऑब्लिगेशंस है दैट वी सबट्रैक्ट. दैट इज बाय इक्विटी इज आल्सो नोन एज नेट एसेट्स. मूविंग ऑन. Share capital is the equity basically. Yes. ओनर का बैग में कितना पैसा है. हाँ, so That's share that is capital. what is net as. No, that's not net assets. But why is नहीं, that? net assets is basically assets minus liabilities. जो तुम्हारा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का टोटल वैल्यू है कि जो शेयर जो ओनर है जो मालिक है मालिक का जितना पैसा है धंधे में दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व. इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स माइनस ऑल द लाइबिलिटीज. दैट इज व्हाट इट्स इंडिकेटिंग. So that's equity, right? That's not a liability. नहीं, it's not a liability. हाँ, It is equity, but it is recorded on the side of liability. Liability and equity करके है ना हेड का नाम. ठीक है. इसमें सिर्फ सर ने बैलेंस शीट अटैच करी है कि बस देख लो कैसी दिखती है. फॉर नाउ आई स्किप. इन्वेंटरी वैल्यूएशन कराया क्या सर ने? कोई सम कराया है? हाँ कराया था इसमें. हाँ सॉर्ट बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है, इंट्यूटिव ही है. विल डू दिस. हाँ बस इसमें तीनों चीजों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट पे. और तो पहले मैं वैल्यूएशन मेथड्स बता देता हूँ क्विक ताकि हम वो वाला सम कर पाए. सर ने सम पहले अटैच कर रखा है, मेथड्स आगे बताई हुई है. आई विल गो बैक टू दैट स्लाइड.
So inventory valuation methods कितने तरह की होती है? First is specific identification method, which is identity of each unit purchased, produced, is maintained. तो हर यूनिट जो आप परचेज कर रहे हो आप उसका स्पेसिफिक आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हो, जैसे कि एक टैग मान लो कि आईडी नंबर, प्रोडक्ट आईडी नंबर, सो एंड यू कीप अ ट्रैक ऑफ कब आया था वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट. एंड दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर क्वांटिटी इज लोअर बट वैल्यू इज हायर. मतलब जनरली महंगे प्रोडक्ट्स जिनका कम वॉल्यूम होता है उनके लिए यूज होता है ये कि एवरी प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड एंड ट्रैक्ड इंडिविजुअली. So there is average cost also. Let's say ये वाले केस में ये वाला केस था हाँ कि मैंने 70 क्वांटिटी ली ₹2 cool. So let's say मैंने 70 क्वांटिटी ली ₹2 के रेट के हिसाब से, 80 ली 5 के रेट के हिसाब से, 50 ली 7 के हिसाब से, तो मैं सबका एवरेज ले लूंगा 70 into 2 plus 80 into 5 plus 50 into 7 upon all the quantity. तो एक तो मेथड ये हो गई कि मैं सारे का एवरेज कॉस्ट ले लूं और जो एवरेज कॉस्ट आ रहा है हर यूनिट को मैं उसी कॉस्ट पे रखूं रादर देन किसी को 2 पे, किसी को 5 पे, किसी को 7 पे करने के. सो दैट इज कॉल्ड योर एवरेज कॉस्ट. स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज लॉस्ट. एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी परचेज ट्रांजैक्शन. जितनी बार मैं परचेज करूंगा उतनी बार मैं एवरेज रिवाइज करता जाऊंगा रिवाइज्ड रेट्स के साथ. सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट. इसमें एक ड्रॉबैक है कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो होता है तुम्हारे प्रोडक्ट्स का वो खो जाता है कि अब हर प्रोडक्ट इवन दो कोई तुमने लाइक ₹2 में लिया, कोई 5 में लिया, कोई 7 में लिया, अब तुम्हारा अगर एवरेज मान लो ₹6 आ गया तो अब सबकी आइडेंटिटी वही हो गई कि ₹6 का ही लिया था ये, जबकि अलग अलग लिया था. सो दिस इज द ड्रॉबैक बट या वेरी वाइडली यूज्ड एवरेज. एंड फीफो एंड लीफो. फीफो इज योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. गुड्स परचेज्ड जो सबसे पहले खरीदे थे उन्हें सबसे पहले निकालते हैं. सो इस केस में ये 70 क्वांटिटी जो हमने ₹2 पर यूनिट में लिया था ये ओरिजिनल था. सो दीज वर इन सबसे पहले. तो सबसे पहले इफ वी सेल 70 आइटम्स, ओरिजिनल स्टॉक वाला हेड हम सबसे पहले आउटलोड करेंगे. दैट इज योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे पहले इन्वेंट्री में आया था दैट विल गो आउट फर्स्ट एज वेल. एंड गुड परचेज लास्ट रिमेन्स इन क्लोजिंग स्टॉक. जो सबसे लास्ट में गुड्स खरीदे थे वो जनरली ज्यादा टाइम के लिए और लंबे टाइम तक रहते हैं क्लोजिंग स्टॉक में. LIFO is your opposite of this, last in first out. So goods purchased last are issued for production. Recent goods become parts of COGS. Goods purchased last are issued for production. Recent goods become part of COGS. ठीक है, जो लास्ट में परचेज किया था वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. सो बेसिकली अगर इस केस में हम देखें तो सबसे लास्ट में हमने 50 क्वांटिटी लिया था ₹7 पर क्वांटिटी के हिसाब से. तो अगर हमारी सेल हो रही है तो हम सबसे पहले अगर हम लीफो फॉलो कर रहे हैं तो ये 50 क्वांटिटी $7 वाला जो रेट है ये वाली सबसे पहले हम अनलोड करेंगे. That is LIFO. Goods purchased first remains in closing stock. Not allowed under IFRS. Please make a very specific note. FIFO Indian accounting standards में allowed है, average allowed है, इससे पहले जो था वो भी allowed है. LIFO is the only one that is strictly prohibited. Indian accounting standards के साथ LIFO नहीं कर सकते आप. तो could be an MCQ, I don't know. LIFO is banned. ठीक है, अब हम ये वाला सम कर ही लेते हैं. We've learned all the techniques. Quantity, cost, total. 70 add 2, 80 add 5, 50 add 7. 70 add 2, 85, 57. 80 add 5, 50 add 7. तो बेसिकली अभी हम अलग अलग तरह से इन्वेंटरीज कैसे वैल्यू होती है, we'll try to determine that. Also the impact on financial statements. तो सबसे पहले we will try out average. तो एवरेज वाले में वी हैव टू डू नथिंग. सबका टोटल निकाल लो बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर दो. सो 70 into 2 ये कर दिया एंड देन जस्ट try to both of these as well. So 80 into 5 is 400, 50 into 7 was 350. टोटल हमारा खर्चा हो गया
इन तीनों का सम बेसिकली हमारा टोटल खर्चा हो गया विच इज 890 रुपीज। तो 890 रुपीज हमने टोटल खर्च करे हैं और हमारे टोटल क्वांटिटीज जो हमारे पास आए हैं वो है 200। सो 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वी हैव, 890 इज आवर टोटल कॉस्ट। एवरेज के लिए वेरी इंट्यूटिव, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, तो टोटल कॉस्ट आपका 890 लगा है और टोटल आपके पास टोटल आपके पास 200 यूनिट्स है, तो पर यूनिट का आपका एक्सपेंस आ गया 4.4। नाउ प्लीज नोट ये 2 रुपीज 5 रुपीज 7 रुपीज सब अलग कॉस्ट पे लिए हुए थे, बट क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं सबका एक ही आइडेंटिटी बन जाता है 4.45। नाउ एवरी गुड हियर वी विल अज्यूम वी विल रिकॉर्ड एज 4.45 रुपीज की परचेजिंग कॉस्ट पे। नाउ सिंस उन्होंने सेल भी दे रखी है वी विल फैक्टर दैट इन एज वेल। It was on this place. There was some sales data given as well. Total sales that were in cash 110 quantity 15 unit price. 110 15 ठीक है। अगर हमने सेल्स करी है 110 क्वांटिटी एंड एट 15 रुपीज पर पीस, तो हमारा रेवेन्यू टोटल तो सिंपल फॉरवर्ड ही है, कोई भी मेथड हम यूज करें प्राइस इनटू क्वांटिटी दैट इज 1650। तो अब हम ना इसमें रिकॉर्ड करने के लिए तीन तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंस हमने टॉप लाइन में देखा था सेल्स में देयर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाला जो पार्ट है इन्वेंटरी इवैल्यूएशन का दैट डील्स विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि तुम किस तरह से उसको रिकॉर्ड करोगे। या तो आप एवरेज पे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो अगर हम एवरेज वाला इस बार में हम एवरेज कंसिडर कर रहे हैं तो एवरेज कॉग्स कि हमने एवरेज क्योंकि लिया है तो 110 यूनिट्स थे और हमारा एवरेज कॉस्ट कितना आया था 4.45। तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया दिस इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी 489.5। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कुछ आएगा अलग और अगले केस में कुछ प्रॉफिट आएगा अलग। विल सी। So this is our entire case. Basically हमने क्या करा, जो भी क्वांटिटी पे जो भी कॉस्ट पे हमने एक्वायर करा था सबका टोटल करा डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, तो हमारा एवरेज आ गया एंड सेल्स में से हमने एवरेज कॉग्स माइनस करा है। अगली बार हम एवरेज कॉग्स की जगह ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कर लेते हैं एक बार, फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट आई लीव इट टू योर। सो 70 to 85 नाउ ये डिलीट करना होगा, ठीक है। सो दिस वन वाज आवर एवरेज एंड हियर वी आर डूइंग ये FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो वी हैव सोल्ड 110 यूनिट्स टिल नाउ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिक्टेट्स दैट जो भी हमने पहले खरीदा था वो सबसे पहले जाएगा, तो जब तक 110 काउंट होगा तब तक के हम गुड्स लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सो कॉस्ट हमारा टोटल हो गया 70A। सो यहाँ पर हो गया 140 वाला कॉस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड होगा और यहाँ पर ये पूरा नहीं होगा। सो 70 यूनिट्स आउट ऑफ द फर्स्ट बैच एंड 40 यूनिट्स आउट ऑफ द सेकंड बैच, क्योंकि टोटल हमने अभी तक 110 ही करा है, हम उतने का ही कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। सो इट विल बी 40 इनटू द कॉस्ट दैट वी एक्वायर्ड इट एट व्हिच इज दिस। तो अभी टोटल हमारा कॉस्ट हो गया इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। सो बेसिकली इसमें और इसमें डिफरेंस ये था, इसमें हमने टोटल लिया एंड वी डिवाइडेड इट बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉग्स में हमने एवरेज ही के हिसाब से सॉल्व करा है। यहाँ पर हम लोग FIFO के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। FIFO बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट 110 यूनिट्स का हमने कॉस्ट लिया 70 और 40 एंड वी गॉट द फाइनल कॉस्ट 340। Not doing that this time. सीधे हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख देंगे एंड 1310 यहाँ प्रॉफिट है। इफ यू नोटिस प्रॉफिट अगर हम जिस तरह से हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट अलग अलग आता है। अगर हमने एवरेज से करा था अलग प्रॉफिट था, FIFO से करा अलग प्रॉफिट। इफ देयर आर नो डाउट्स आई विल मूव ऑन, अदरवाइज शूट। ऑल गुड। Yeah, let's move on.
या लेट्स गो। ठीक है, ये मेथड्स हम कवर कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन आई होप सबको पता होगा। एंड अभी ये एक ही केस दिया हुआ है, यहीं पे सॉल्व्ड है, तो आई एम नॉट सॉल्विंग इट अगेन। आई जस्ट एक्सप्लेन वन बाय वन। ब्रिटानिया इज प्लानिंग एन ऑफेंसिव ऑन HUL बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट रेंज, द प्लेटो। तो 1 लाख की मशीनरी खरीदी है एंड यूजफुल लाइफ साइकिल इज 5 years and scrap market value is 20,000. I'll tell you the method to solve these. 3-4 तरह की मेथड्स है। सबसे पहले आती है स्ट्रेट लाइन मेथड, श्योर आगे कहीं पे होगी। Okay, it's just the name. I'll explain it anyways. So, wait a minute. हाँ, तो 1 लाख रुपीस की तुम्हारी मशीनरी है, वो 5 साल तक तुम्हारे काम की है एंड 5 साल के बाद तुम 20,000 रुपए में उसे स्क्रैप में बेच सकते हो। डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होगा कि जो तुमने पहले कॉस्ट दिया है वो रिकॉर्ड होगा, उसमें से तुम माइनस करोगे जितना तुम इससे रिटर्न ले सकते हो 5 साल के बाद। 5 साल बाद तुम्हारे काम की नहीं है वो मशीन, बट मार्केट में 20,000 में बिक जाएगी, डिसमेंटल होके whatever। तो 1 लाख minus 20,000 would be your actual cost for the 5 years, correct? 1 लाख जो तुमने पे किया और 20,000 जो तुम्हें पता है 5 years के बाद तुम्हें मिलने वाला है, तो 80,000 नेट तुम्हें पड़ेगा 5 साल का। 80,000 जो तुम्हें नेट पड़ रहा है 5 साल का, उसे तुम 5 साल से डिवाइड कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हर साल का कितना कॉस्ट है, which is basically 60,000. If this is good, I'll move to the next method. Yes. Cool. तो अब भैया ये इसका शेड्यूल बनता है। 1 लाख का ये है, डेप्रिसिएशन 16K, तो हर साल 16K माइनस होता जाएगा। 1 लाख minus 16K, which is 84 and so on and so forth, यहाँ तक आते आते। Closing machinery will be 1 lakh minus 16K, 84K, and हर साल बेसिकली 16K माइनस होता जाएगा अप अंटिल वी ओनली हैव 20K। 20K की जो हमारी वैल्यू है मशीन की, वो हमें मिल जाएगी स्क्रैप में बेच के। I'll move to the second example. Why is closing value of machinery not zero since it was not usable in the company anymore? I hope इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। क्लोजिंग वैल्यू मशीनरी की जीरो नहीं है क्योंकि 20,000 हम उससे अभी भी रियलाइज कर सकते हैं, ऑल्दो वो हमारे काम की अब नहीं बची है। How is the 16,000 calculated already done? What is the impact on financial statement of different years? तो अलग अलग साल पे 16,000 एक तो एसेट साइड में से माइनस होएगा, दूसरा इनकम स्टेटमेंट में से माइनस होएगा डेप्रिसिएशन एबिटा के बाद। एबिटा होता है, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर एबिट पे आते हैं। तो वहां पे जो डेप्रिसिएशन माइनस होता है दैट विल बी 16K। एसेट की वैल्यू में से हर साल 16K जाएगा। These are the only two impacts. फिर यहाँ पे थोड़े से एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। I mean, if you all want, we can do that. Otherwise, we can skip. Same ही method. We'll go with skip. And the CEO checked with HUL counterpart who told him that HUL believes the utility of machine reduced to 40% every year. ठीक है, ये वाला थोड़ा सा different है. We'll just see the calculation. थोड़ा सा zoom कर लें. Yeah. So एक सिंपल रूल है, हर साल मशीन की वैल्यू 40% से कम हो जाती है। तो जब 1 लाख वैल्यू है उसकी, तो 40,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, नेट मशीन की वैल्यू बची 60,000 जब है तो अब 60,000 का 60% लगेगा, विच इज 24K का तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया। देन द वैल्यू ऑफ मशीन इज 36K। अगेन इसका 60% लेंगे, देन द रिमेनिंग इसका 40% लेंगे, रिमेनिंग 60% इज योर वैल्यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ अप अंटिल यू ओनली हैव 21,600। इसमें से सिर्फ हम 1600 ही माइनस कर रहे हैं क्योंकि वी नो फॉर अ फैक्ट कि 20,000 तो उसकी लास्ट में वैल्यू बचनी है, लास्ट में एडजस्टमेंट है बस। एंड 20,000 यहाँ पे, नाउ दिस 20,000 विल बी रियलाइज्ड वंस वी सेल इट एज स्क्रैप। What else? Jamie acquired an asset on 60,000 cash at that time. Estimated the asset would last 10 years at the beginning. Estimated the remaining life. So guys, यहाँ पे थोड़ा mental maths ही कर ले फटाफट। Does that work? Yeah. 60,000 का चीज है, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 10 years की लाइफ है। क्योंकि ये 60,000 हमें 10 years में स्ट्रेच करना है, विल डिवाइडेड बाय 10 years, क्योंकि 10 साल में हमें इक्वली बांटना है। 6,000 हो गया मेरा शुरू में डेप्रिसिएशन, बट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 3। अब ईयर 3 के बिगनिंग पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन वी हैव ऑलरेडी चार्ज्ड, व्हिच इज 6,000, टोटल 12,000 का डेप्रिसिएशन वी हैव चार्ज्ड।
तो अब मशीन की टोटल नेट वैल्यू बची 60,000 माइनस 6,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 6,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो 60 माइनस 6 विच इज 60 माइनस 12 48,000. ईयर 3 के पहले मेरी मशीन की वैल्यू है 48,000. अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि भाई ये बस अब 3 साल ये चलने वाली है और 3 साल के बाद 3,000 की स्क्रैप में बिक जाएगी. तो 48,000 आज मेरी मशीन की वैल्यू है. 3,000 मेरे रियलाइज होने एंड में. तो 48 minus 3 would be 45, which will split across 3 years. So 15, 15, 15 for each year. So if GME use straight line method, what is the impact on income statement for year 3, which will be 15,000? यार अगर calculation नहीं समझ में आया तो I can repeat, otherwise like we can go on. All clear. Can you just one question here? Because it's changed, does it? Yes. Do we have to make any other changes apart from normal entry of depreciation or? Okay. नहीं, हम कभी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में पास्ट रिकॉर्ड्स में जाके चेंजेस नहीं कर सकते. हमने पहले गलत कोट एंड कोट गलत करा था, मतलब हमारी पहली मेथड के हिसाब से करा था व्हिच वाज 6,000 ईच ईयर. वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते. आज हमें पता चला कि चेंज हो गया तो हम आज से चेंजेस कर देंगे. इट्स लाइक दैट. Priyanshu, can we please do this again? हां कूल. थोड़ा सा एक्सेल खोल लेते हैं. यार एक्सेल के बिना ही कर लेते हैं. नॉट एन इशू, बस मेरे को ना आफ्टर 3 इयर्स हाँ जी बिल्कुल. तो बेसिक प्रॉब्लम मैं आपको ऊपर से पहले ऐसे समझा देता हूँ. 60,000 की कोई चीज है आपके पास, 10 साल वो चलने वाली है और एंड में वो कबाड़ में भी कुछ नहीं मिलना उसका. तो 60,000 आपको 10 साल में स्प्लिट करने हैं. बेसिकली हर साल 6,000. करेक्ट. ठीक है. एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 योर कंपनी रियलाइज्ड कि अब ये मशीन 3 ही और साल चलेगी. तो ईयर 3 के शुरू में पता चला कि भाई अब ये 3 ही साल चल रही है रादर देन 7 मोर इयर्स दैट यू एस्टिमेटेड इट फॉर. अब बस 3 ही साल बचे हैं इस मशीन के. तो 60 में से मैंने 2 साल तक 6,000 माइनस करा था, तो अभी मशीन की वैल्यू होगी 60 माइनस 6 60 माइनस 12 48,000. तो ईयर 3 के स्टार्ट पे मशीन की वैल्यू थी 48,000. यहाँ तक सॉर्टेड है. ठीक है. 48,000 की अब क्योंकि मैं पहले की एंट्रीज कर चुका हूं, उसमें मैं पहले के जो अकाउंट्स पब्लिश हो चुके हैं उसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकता, तो वो एज इट इज रहेंगे. आज से मैं देखता हूं क्या चेंजेस करने हैं. तो आज मेरी मशीन की कीमत है 48,000. 3 साल के बाद मुझे 3,000 उसको सैल्वेज करने पे मिल जाएंगे, मतलब बेसिकली कबाड़ में बेचूंगा तो 3,000 रुपए मिल जाएंगे 48 में से. तो 45 तो इफेक्टिवली मेरा 45 ही हुआ. एंड 45 को मुझे कितने साल में स्प्लिट करना है? 3 साल में. 3 साल. तो 45 by 3 is 15 के. Cool. Sort. मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे इजी है. टोटल कॉस्ट यू पेड माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूजफुल इयर्स, दैट इज द फॉर्मूला. ये सारा थ्योरी वी कैन डू. अगर और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है तो. नहीं बचा है. ओह नाइस. ओनली थ्योरी टू गो. ठीक है, ये वाला हो गया. हिस्टोरिकल वैल्यू. तो हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब बेसिकली जिस कॉस्ट पे भी तुमने वो कोई भी एसेट एक्वायर करा था, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल वैल्यू. एमोर्टाइज्ड वैल्यू बेसिकली अगर तुम डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन के लिए एडजस्ट कर लेते हो उसके बाद जो वैल्यू आती है, जैसे इस क्वेश्चन में 60K थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, बट हमने 12K माइनस कर दिया 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद, तो ईयर 3 पे हमारी वैल्यू 48K थी, which is post adjusting for depreciation. So it will be called either depreciated value or amortized value, depending on the type of asset. So depreciation लगता है fixed assets में, amortization लगता है आपके intangible, depreciation लगता है tangible assets में, amortization लगता है intangible assets में. तो amortized or depreciated value would be value of the asset after adjusting for depreciation or amortization. Now net book value will be historical cost minus total depreciation till date. जैसे हमने इसमें करा था ईयर 3 के बिगिनिंग पे हमने वैल्यू निकाली थी 48. कैसे निकाली थी? टोटल उस टाइम पे हमने एसेट के लिए जो खर्चा करा था माइनस डेप्रिसिएशन. तो जो टोटल एसेट का प्राइस था माइनस डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट करके यहाँ पे बचता है, दैट इज नेट बुक वैल्यू. डेप्रिसिएबल लाइफ इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले 10 साल फिर 3 साल देखा था. एमोर्टाइजेशन एज आई सेड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए. इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली तुम्हारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और सॉफ्टवेयर्स जो तुम्हारे पास यूनिक मोट है बट इट इज इंटेंजिबल, सो दैट इज योर एमोर्टाइजेशन. उस पे लगता है. फिक्स्ड तो तुम्हें पता ही है, टेंजिबल वाले जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वो सब. तो एमोर्टाइजेशन इज फॉर इंटेंजिबल एंड डेप्रिसिएशन इज फॉर टेंजिबल. एंड डिप्लीशन इज द थर्ड थिंग जो नेचुरल एसेट्स पे लगता है.
नेचुरल मतलब लैंड वैंड के डिप्लीशन और ये सब, ऑल्दो होता नहीं है तो वो प्रैक्टिकल यूज नहीं है, लैंड डिप्रिशिएट होता नहीं है अभी तक तो, बट या दैट इज डिप्लीशन. Now, by basic terms, per year allocation of the total cost of the asset charged in the ratio of benefit received from the asset. सॉरी एक चीज, अगर लैंड डिप्रिशिएट होता है तो वो भी हम लोग वैसे बुक्स में लिखते हैं क्या? हाँ, अगर हुआ तो लिखेंगे. कोई भी तरह का एसेट अगर डिप्रिशिएट हो रहा है तो लिखेंगे. बट जनरली लैंड ना, अगर मैं आज 10 लाख में खरीद रहा हूँ तो अगले साल एटलीस्ट 11 में तो बिकेगा ही. लाइक दैट्स द रूल ऑफ द थंब. एटलीस्ट 10 इयर्स में तो यही होगा. तो उसकी वैल्यू कम होने की जगह बढ़ जाती है, तो डिप्लीशन उसमें अभी तक तो अकाउंट नहीं करते हैं. गॉट इट. मशीन, प्लांट, इन सब पे बहुत ज्यादा जनरली होता है. ठीक है. पर ईयर एलोकेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट चार्ज इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट रिसीव. अच्छा, अब ये एक नया टर्मिनोलॉजी आया है, पर ईयर एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट. तो बेसिकली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड देखी, एक देखी थी हमने वैल्यू रिडक्शन. वैल्यू रिडक्शन आपको याद होगा 40% एवरी ईयर, तो 1 लाख का 40,000, फिर 60 बचा, उसमें से 24,000 माइनस करा, तो एक हो गया स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब टोटल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. सेकंड हो गया आपका वैल्यू डिप्रिसिएशन, सॉरी उसका नाम क्या था यार, डिप्लीटिंग मेथड. हर साल 40% डिप्लीट हो रहा है, सिंपल. अब यहाँ पे तीसरी मेथड आई है, नाम नहीं लिखा हुआ है इसका समाओ पीपीटी में, बट ये बेसिकली रेशोज में होती है कि एसेट से मैं जितना कमाई कर पा रहा हूँ उसके रेशो में ही मैं उस पर कॉस्ट डालूंगा. लेट्स से एसेट 5 साल चलने वाला है, इस साल मेरे को 20% माल देगा, अगले साल 30 देने वाला है, उसके बाद 20, ऐसे करके 5 साल में 100% स्प्लिट है. तो जितना मुझे वो प्रोडक्टिविटी देगा मैं उसी के रेशो में कॉस्ट चार्ज करूंगा. इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इट्स थ्योरेटिकल, बट जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स. रेशो के हिसाब से होगा कि एसेट से मुझे जितना वैल्यू मिल पा रहा है उसी रेशो में कॉस्ट चार्ज करूंगा. देन कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन. बेसिकली हम एसेट की वैल्यू हमें क्यों माइनस करनी पड़ती है ओवर इयर्स. एसेट अल्टीमेटली क्यों खत्म हो जाते हैं, जो होते हैं वो तो वेयर एंड टेयर होता है, टाइम के साथ खत्म होते जाते हैं. ऑब्सोलेसेंस इज बेसिकली कि अब वो रेलेवेंट ही नहीं बचा, 10 साल बाद कुछ इतना क्रेजी आ गया कि दिस इज ऑलमोस्ट यूजलेस. And depletion again, same thing, wear and tear. Now straight line we've done, return down value we've done. Return down value was basically हर साल 40%. Double declining का कोई example नहीं दिया है, it is just a concept. इसमें कोई फॉर्मूला आता है बट सर ने मेंशन भी नहीं करा था क्लास में. एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वाला जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, रेशो में, कि जितना प्रोडक्टिविटी एसेट मुझे देगा बिजनेस में उसी के हिसाब से मैं उस पर कॉस्ट चार्ज करूंगा. सो दैट. And will the total amount of depreciation remain same? This is a very important point. Could be, I could see this as a potential MCQ. Total amount of depreciation always remains the same. पिछले केस में आपने देखा होगा 60K की मशीन थी, 60K में ही रही, unless salvage value change हो जाती है, which is rare. तो depreciation total जो तुम चार्ज करते हो चारों मेथड से, given everything context constant, तो सबका टोटल जो आएगा depreciation का, it will be the same. ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट इज डिफरेंट कि ये 60 को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 12-12 करके, 6-6 करके, 10-10 करके, व्हाटएवर. बट डिप्रिसिएशन टोटल सेम ही रहता है हमेशा, किसी भी मेथड से करो. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन. प्रेजेंटेशन इज ग्रॉस ब्लॉक लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. सो हर साल जो हम रिपोर्ट करते हैं वो ग्रॉस वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से दिखाते हैं. एंड इट इज अ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. बुक वैल्यू मतलब जिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं तो धीरे धीरे वो फॉल होती जाती है. जैसे हमने देखा था हर साल 6,000 माइनस होती जा रही थी. एंड डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ऑन द प्रॉफिट्स. हमने इनकम स्टेटमेंट के टाइम पे देखा था कि एबिटा के बाद हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो ये प्रॉफिट्स के ऊपर एक चार्ज है, मतलब ये एक एक्सपेंस है. एंड इट हैज नो रिलेशनशिप विद द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट. बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनल बुक कीपिंग के लिए ही होता है. सो नथिंग रिलेटिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. And it has little to do with physical deterioration. Future benefits are more critical. So basically physical deterioration अगर हो रहा है but फिर भी अगर मशीन बेनिफिट दे रही है तो हमें दिक्कत नहीं है. फिजिकली वो कितने भी deteriorate हो जाए, as long as future benefits हमें मिलते रह रहे हैं, we will keep that into consideration. Purely an internal transaction and has no outside connection, as I said, and it is related to fixed assets only and not the current asset. Current asset is basically operational cycle में जो आते हैं 12 मंथ के पीरियड के अंदर जो एसेट्स होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है. फिक्स्ड एसेट पे ही लगता है, तो लॉन्गर टाइम के लिए यूजफुल होता है. फिर अगेन आयशर का कोई स्क्रीनशॉट है जस्ट फॉर लाइक विजुअल रेफरेंस.
अकाउंटिंग फॉर एनी चेंज इन डेप्रिसिएशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. चेंज इन यूजफुल लाइफ वाला क्वेश्चन ही था वो 60,000 वाला. कंपोनेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ठीक है. गाइस ये भी मैं करवा दूं या इज दिस समथिंग यू ऑल कैन टेक ऑन? लास्ट I think we'll do this, यार. But thanks, Priyanshu. Thanks a lot. हाँ, बस थोड़ा सा मेरे को इको पढ़ना था भाई, वरना ये 1-2 स्लाइड में तो अब क्या ही. और Yes. yes, चलो, thank you all so much Thank for you. joining. Good night. Have a great fucking exam tomorrow. Good night. Thank you, guys. Bye, Kashyap. Welcome, Amol.